A very good evening, everyone. How are all of you all doing? Let me know in the chat section. And a very warm welcome to the Sunday Masterclass. Let me know your location and occupation. Plus, जो लोग पहली बार आए हैं, first time है, can you please type FT? And FT के बाद can you please write your location and occupation so that we can have that interaction properly? Yes. Kindly let me know. Patna, okay, great. Bhuvan Kumar, business, great. Yes, everyone. Amarpreet sir, Hamirpur, Ranjan, Dr. Ranjan, great. MLM, okay. Shahjahanpur, Ved Prakash, great. Manindra Kumar, FT Darshan Ram, great. Farmer. From Chamoli, Gharwal, Uttarakhand, great. So great to have you all here. First of all, I really want to appreciate your presence over here because you may be doing so many other things, especially it's Sunday. And again, it's Makar Sankranti today. Yes, a lot of you were celebrating Makar Sankranti today also. So a very happy Makar Sankranti. And in this awesome and auspicious day, you may be doing so many other things, but you chose to be present over here. And that is a big deal. Okay, and why you all are here, let me tell you. Yeah, you all know it, but still I want to just appreciate the fact that every one of us are so much busy in our day-to-day life, and we are too busy to make changes. Everyone listen to me very carefully. We are too busy to make changes. We think that जैसे चल रहा है चलने देते. We are too busy to adapt, too busy to make improvements, make changes. ठीक है? Somebody is knocking at the door and saying that अभी ये चीज नहीं चलेगा. You have to make some changes, but still we are too busy in our day-to-day life that we say and we ignore that and avoid that and say that nahi, I am very much busy. I need to continue this. So you are here, you have taken a pause, taken a break, and now you are thinking about deepening and strengthening your foundation so that you can build your skyscraper towards any extent that you want. And that is the fact that you must appreciate. Are you all getting my point over here? That you are here taking a pause to actually strengthen your foundation. Yes, क्योंकि हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है, एक गाड़ी से हमें सीखना चाहिए कि उसमें जो व्हीकल, क्लच, ब्रेक, इतनी सारी एक्सेलरेटर, इतनी सारी चीजें रहती हैं, उन सारी चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए. कब आपको कौन सी चीज का यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए. कब ब्रेक इज रिक्वायर्ड, कब एक्सेलरेटर इज रिक्वायर्ड, कब द क्लच you need to press वो required है. So you need to maintain that balance, right? सिर्फ एक्सेलरेटर दोगे तो एक्सीडेंट होगा ही, है ना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर आपको पॉज चाहिए ही था. यस, द कॉम्बिनेशन. यस दर्शन राम. तो यहाँ पे आपको एक पॉज चाहिए कि आप एक बार देखो कि एम आई रनिंग माई सेल्फ ऑन एन ऑथेंटिक डायरेक्शन और नॉट. ठीक है. Servicing, Rajesh Panchal sir, absolutely. Servicing is also required. ठीक है. जब कोई भी ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच कुछ नहीं दबाना है, गाड़ी को ऐसे छोड़ देना है किसी और के हवाले, एक मेंटोर के हवाले जो गाड़ी के बारे में जानता है, फॉर द सर्विसिंग. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये हम एक व्हीकल का एग्जांपल लेके समझ रहे, लेकिन वी ऑल नो कि कौन दुनिया में पहले आया था. हम सब ह्यूमंस पहले आए थे या व्हीकल? ऑब्वियसली हम सब पहले आए थे, यानी हमारी जर्नी से व्हीकल इंस्पायर्ड होके बना है, पर आज हमें उसकी एग्जांपल लेनी पड़ रही है. कैन यू ऑल इमेजिन? कैन यू ऑल इमेजिन? कैन यू ऑल इमेजिन? इज इट माइंड ब्लोइंग और नॉट? So you need to understand कि there is a huge shift to be made ताकि आप एक्चुअल में वो जो साइकिल उल्टा हो गया है इसको आप सीधा कर पाओ.
ठीक है, कि एक्चुअली थिंग्स हैपन बाय योर डायरेक्शन, कि आप कंट्रोल दो, ठीक है, क्योंकि अभी रोबोट्स, एआई, ये सारी जो चीजें, दीज आर रिप्लेसिंग यू, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग जो ये एआई, रोबोट, मशीन लर्निंग ये सब नहीं कर सकते, जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. व्हाट इज दैट थिंग दैट आई एम इररिप्लेसेबल फॉर? And for that, to finding out and discovering that thing, we all are sitting here. Everyone, can you please turn on your camera, because camera turn on होना बहुत जरूरी है, ठीक है, so that हम लोग यहाँ physically तो meet कर नहीं रहे, हम लोग यहाँ पर digitally है, so we need to ऐसे मुझे ना लगे कि मैं बस एक शो कर रही हूँ and there is no one on the other side, तो इसलिए you must turn on your camera so that the conversation must happen very frequently, positively, अच्छे से, है ना. So kindly turn on your camera. Second thing, एक हो गया पहला रूल, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, काइंडली सबका कैमरा ऑन कीजिए आप लोग. सेकेंड थिंग इज, अच्छा वीडियो डिसेबल्ड है क्या? सेकेंड थिंग इज, आप सबको क्या करना है, you need to be highly active in the chat section, ठीक है, highly active in the chat section. अच्छा, okay, I'm just enabling all of you all. ओके, सी, मैं टर्न ऑन कर रही हूँ कैमरा. सबसे पहले सी, जब तक मैं वो चीज करती हूँ, यू मस्ट, एवरी वन ऑफ यू, सी, आपने जो भी सुना है ना अभी वाले वीडियो में, वो आप भूल ना जाओ, इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू टाइप इट, ठीक है. तो आपने 2-3 पॉइंट वो क्या लर्न किया जो वीडियो अभी चल रहा था, वो आप मुझे प्लीज यहाँ पर लिख के बताएं, ठीक है, एवरीवन. Yes, can you please type your learnings? 2-3 points maximum, minimum 3 points आप काइंडली लिख के बताइए, आपको अभी जो वीडियो चल रहा था उससे आपको क्या समझ में आया. 0 is nothing but 0 is everything. Okay, see, theoretically आप नहीं बताइए, आप थोड़ा practical होके बताइए. See, आप 0 और 9 का करोगे क्या? These are just numbers, but still आपको वो बताना है जो आपके लाइफ में उस चीज का क्या इम्पैक्ट हुआ है, वो चीज आपको बतानी है, ठीक है, वैसी लर्निंग. सो ये आपकी लिखते लिखते ही आएगा, ठीक है. ये आप जितना आप कंज्यूम करते हो उसको जब आप लिखोगे, उसको बाहर बोलोगे, देन आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी. इसलिए वी ऑलवेज टेल यू टू रिकॉर्ड योर वीडियोस, लर्निंग वीडियोस, एंड टू एक्चुअली राइट योर लर्निंग्स एज वेल, ठीक है. सो फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 minutes we'll just recap the video, ठीक है. आप सबने क्या लर्न किया? शून्य से सर्जन की ओर, either surrender completely to supreme power or take complete charge of our life. Okay, acceptable. कैमरा मैंने enable कर दिया है, आप सब काइंडली ऑन करें अपना कैमरा. यस, राजश्री वेलकम, अनुपमा मैम वेलकम, राजेश पांचाल सर, भुवन कुमार, मनींद्र कुमार, yes, Ved Prakash. So many new faces over here. Glad to have you all here. Align होना है, ठीक है. Okay. Yes, rest all of you all. Why aren't you typing? वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको लिंक डाल दूंगी इन द ग्रुप्स. आप सब ग्रुप में हैं. सी
इफ यू लिसन टू दैट वीडियो इन डेप्थ, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके सिर्फ लाइफ में ही नहीं, बिजनेस, करियर, एवरीथिंग, आपके हर एक सेकंड के लिए वो आपको बूस्ट करती है, ठीक है। 2-4 पॉइंट जो ऐसे आप ऐसे ही आपको याद होगा, वो है कि सबसे पहला लव, ठीक है, लव फॉर योर वर्क, लव फॉर योर ऑडियंस, लव फॉर योर फैमिली, लव फॉर योर सेल्फ, ढाई आकर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स, सम ऑफ द पॉइंट्स। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको वहां पे पता चली होगी कि एनर्जी की टॉर्च का बीम जो लाइट आता है वो क्या है, उसको वो कभी ग्रेविटी का असर उस पर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है, ठीक है, इट्स जस्ट अ बीम ऑफ लाइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो जो पिरामिड एंड ऑल जो आप सुने होंगे, सो आप उसको रिकॉल कीजिए। हमने आपको ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर देना है, तो आप ग्रुप में जा करके लिंक क्लिक करके उसको सेशन के बाद वो वीडियो को वापस से आप देख सकते हो, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली कवर दैट वीडियो, और हमारे हर सेशन के पहले वो वीडियो हम चलाते ही हैं। सो आप अगर हमारे सेशन में जितना आपको टाइम दिया गया, अगर 3:30 है तो 3:30 एग्जैक्ट आप आओगे, सो यू विल बी एबल टू कंज्यूम दैट वीडियो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ या लव मीन्स देना, अमरप्रीत सिंह, यस। ग्रुप में आप सब नहीं है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, जस्ट सी इफ देयर इज सीट लेफ्ट, तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। Yeah, this is the group for link for the group. Yes. So voice break हो रही है, let me check my connection, otherwise आपके पास network issue होगा। Yes, आपके साइड से network issue है सर, वेद सर। Try rejoining. ठीक है वॉइस, हाँ, तो बाकी सबके लिए वॉइस ठीक है। ऑल राइट, नाउ let's start with today's topic, and we have kept it very precise, or as itself वो sound करता है precise, that is niche, ठीक है। और today I'll also be like आपको एक tool भी मैं देने वाली हूँ, ठीक है। I will just show you that tool and then later we'll decide कि आपको उसको use कैसे करना है and all, but I'll show you how it works, जिससे आप अपना niche find कर सकते हो। Second thing हम लोग जो आज करने वाले हैं, that is discovering your market, ठीक है। There are 5 C's, ठीक है, C। अब सबसे बड़ा सी, जब सी मैं बोलती हूँ तो सबसे बड़ा सी आपको आता है दिमाग में, वो है आपका चैलेंजेस, ठीक है। लाइक बी और डी, बर्थ एंड डेथ के बीच में चैलेंजेस रहता है, सी रहता है, एंड देन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, उसके लिए आपके पास चॉइस रहती है, ठीक है। सो लाइक दिस देयर आर 5 सीज जो आपके बिजनेस को बिल्डअप करने में मदद करती है। सो दोस 5 पिलर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, नीश टूल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो है अपने नीश को फाइंड करना। सी नीश, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट in any industry that you are? अगर you are not positioning yourself as an authority, as an expert, तो market आप पे trust करेगी ही नहीं, okay? Why they will trust you? If you are not a specialist, why they will trust you? अगर आपको let's say कुछ let's say बहुत see, एक जनरलिस्ट का क्या काम क्या होता है, आप अगर पेट दुख रहा है या फिर सर दुख रहा है या फिर कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो आप दवाई दुकान में जाते हो, वहाँ जनरल एक फिजिशियन रहता है, वो आपको दवाई देता है। लेकिन अगर कुछ सीरियस है तो आप क्या करते हो, वही जनरलिस्ट के पास जाते हो? नेवर, यू गो टू द लाइक वो उसके लिए जो स्पेसिफिक डॉक्टर है आप उनके पास जाते हो, एंड उन स्पेसिफिक डॉक्टर का चार्ज भी उसी हिसाब से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल से 2 चीज क्लियर हो गई कि आप जनरलिस्ट पे ट्रस्ट नहीं करते। आपको अगर कुछ सीरियस हुआ है तो आप उस स्पेसिफिक वाले डॉक्टर को ट्रस्ट करते हो, ये एक ट्रस्ट फैक्टर एक क्लियर हो गया कि और सी, आप जिसको ट्रस्ट करते हो ना, आप उसी को मनी भी पे करोगे,
ठीक है। तो अगर आप एक जनरलिस्ट हो तो कोई आंख बंद करके आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक स्पेशलिस्ट हो तो लोग आंख बंद करके आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट हो, देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट पीपल विल बी पेइंग फॉर यू फॉर योर एक्सपर्टीज। आप सभी लोग अच्छे हैं? आप ही लोग पूछें क्या चाहिए, आप लोग डायरेक्ट पूछें, आप ही का सवाल का जवाब कर दिया जाए। पहले कैसा चाहते हैं? अनुपमा, सेठाराम जी, छाबड़ा साहब, जितेंद्र साहब, आस्क, क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए, तथास्तु मिलेगा। आइए, सामने आइए और मांगिए क्या मांगना है। You can type your questions over here. पैसा और ज्ञान, टाइम का मैनेजमेंट, 300 crores in 365 days. एक तरीके से ये जो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं ना, इन तीनों का आंसर भी नीश के अंदर आता है, बिकॉज एवरीथिंग का पहला स्टेप नीश होता है। नीश का मतलब सिर्फ आपके टॉपिक के लिए नहीं, नीश का मतलब स्पेसिफिक, ऑथेंटिक, प्रायोरिटाइज्ड थिंग। अनुपमा मैम, कैमरा सामने लेके आओ फटाफट। नमस्कार अनुपमा मैम, बताएं आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? हेलो, आई एम अनुपमा। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब कंपनी है काटरज में, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। हम इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं और उस पे हम मुझे कमीशन मिलता है। अभी कुछ दिनों से आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, क्या Yes, sir. अनुभव है, हम लोग क्या कर रहे हैं? अनुभव तो सर अद्भुत अनुभव है। मतलब मैं आपके हर एक वीडियो सुन रही हूँ और हर एक वीडियो में मेरा कुछ ना कुछ मतलब इनपुट होता है, और जो मैंने कभी पहले नहीं सुना है, टोटली डिफरेंट है। और जितना मैं डीप जा रही हूँ ना, उतना मुझे लग रहा है कि मैं मतलब कुछ अलग ही लेवल पे रीच हो रही हूँ सर। जमीन छोड़ दिया आपने, हल्की हो गई हो? यस सर, यस सर, यस सर। जमीन छोड़ के हल्की हो गए? स्टार्टिंग में ना थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैंने करेक्ट डिसीजन लिया है या नहीं, थोड़ी घबराहट थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे, मतलब नॉलेज मिल रहा है ना, फिर अब मतलब ऐसे लग रहा है कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे। एंड ना, मतलब जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे मतलब जो मैं मांग रही थी ना, जो मैं चाह रही थी होना चाहिए लाइफ में, एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए ही हो, सीरियसली। देखिए, जहां तक ज्ञान का बात है ना, अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। आज के डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है वो समझिए, क्या गया और क्या आया। आप मुझे बताइए कि क्या गया और क्या आया, इस तरह से आप क्या समझती हैं? जैसे कि एग्जैक्टली जैसे आपका सवाल था लास्ट, मुझे याद आ रहा है, उसमें आपने कहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे करना क्या है? आप बताइए अब, क्या क्लियर करना क्या है? करना क्या है, जैसे अभी मैं जिस फील्ड में हूँ ना, मतलब वो चल तो रहा है, पर जो पॉइंट, जिस लेवल पे मैं रीच होना चाहिए ना, वो वहां तक अभी तक नहीं हूँ। मतलब मैं, जैसे आपने बोला है कि क्लाइंट को हमें उनसे कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, मेरा वैसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं लैक हूँ। मतलब सामने कोई बैठता है क्लाइंट, तो वो दुविधा में ही रह जाता है, 50-50। तो वो मुझे करना, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छा है जो मैं दे रही हूँ, बट मैं उन तक कनेक्ट नहीं हो पा रही। यानी डेफिनेटली हर यहां पर आपको समझ में आ गया, हम जिस तरह का ज्ञान आपके अंदर पिरो रहे हैं उसका सीधा सा एक ही अर्थ है ना, आप
अपने ओरिजिनलिटी से कनेक्ट होंगे। अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्ट होने का जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको जो सराउंड मिला है, आपको जो वातावरण, जो परिवेश मिला है, जो बड़े बुजुर्ग मिले हैं, जो शिक्षक मिले हैं, जो मोहल्ला मिला है, जिस तरह के बात विचार मिली है ना, उसने आपकी ओरिजिनलिटी पे एडल्ट्रेशन किया है। वो बातें आप पे डाली हैं, वो बातों से आपको सींच के यहां तक लाया है ना, जो आपको आपकी ओरिजिनलिटी से दूर कर दिया है। अभी क्या हो रहा है, अब क्योंकि एज ही डिजिटल है, एरा ही रोबोटिक है, तो आपको समझना होगा कि हम कितने रोबोटिक हैं, हम कितने डिजिटल हैं, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी ही ज्योमेट्री पे अलाइन है। हमारी सबकी ओरिजिनलिटी ही ज्योमेट्रिक पे अलाइन है, ज्योमेट्रिकली हम लोग अलाइंड है, बावजूद इसके कि क्योंकि हम अपने बारे में ही नहीं जानते हैं, और चीजें जो हमारे को compete कर रही हैं वो हमारे जैसे लोग हैं ही नहीं। अब हमारा कंपटीशन एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इस तरह की जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स है उसके साथ है। तो धोखा ये हो रहा है कि हमें बाकी की चीजें, गैजेट या कोई ऐसा मशीनरी नजर आ रहा है जिसको लग रहा है कि बस इसको ऑपरेट करने सीख गया, यहीं से मेरी गाड़ी चल पड़ेगी, मुझे सिर्फ ऑपरेट सीखना है। मतलब मैं अभी हल से अपना खेत जोत रहा था, अब मेरे पास एक ट्रैक्टर है, या फिर मैं अभी कुदाली से मट्टी निकाल रहा था गड्ढे से, जमीन से, अब मेरे पास जेसीबी है, मुझे सिर्फ जेसीबी ऑपरेट करने आना चाहिए। लोग यहाँ पे गाड़ी अभी भी फंस रही है। लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ ड्राइवर हो जाऊं पर्टिकुलर गैजेट का तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन मैं शुभ वरदान, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस है, वो इससे रोक रहा है, बोल रहा है नहीं, सतर्क हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम सिर्फ गिग इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट बन के रह जाओगे, और यू आर नॉट गिग इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट, यू आर ए क्रिएटर। तुम वो ओरिजिनल प्रोडक्ट हो जो जेसीबी नहीं, जेसीबी की जैसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर चीजें प्रोड्यूस करने की औकात रखता है। नहीं तो आपको अगर लगा कि मैं जेसीबी ऑपरेटर बन गया, आपको लगा कि मैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने वाला बन गया, तो खत्म हो जाएगा कहानी। आप एक गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन के रह जाओगे। और गिग इकोनॉमी जिस तरह से अभी आपसे जोमेटो का झोला ढुलवा दे रहा है, जिस तरह से आपको ओला, उबर और इस तरह के ऐप, आपको लग रहा है ना कि अमेजोन पे हम अपना सामान लोड कर देंगे तो हम बहुत ज्यादा अच्छा माल बेच सकते हैं, तो आपको वो बार बार मजबूर कर रहा है छोटे से प्रॉफिट में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करा लेने के लिए। जबकि अब टेक्नोलॉजी का जो धार है ना, वो आपको मिलियंस में, ट्रिलियंस में पैसे पर मिनट, पर आवर दे सकता है। किसका किसका बल्ब ऑन यहां तक हुआ, कौन कौन मेरी बातों से कनेक्टेड है, और किसका किसका बल्ब ऑन हुआ, मेरे को समझाए यहाँ पे लिख करके कि मैंने जो बोला वो आपके कनेक्शन में आ गया और उससे आपका बल्ब ऑन भी हो गया कि मैंने क्या बोला। हेलो, टाइप करें, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें, बल्ब ऑन। नाम पढ़ा जाए। अमरप्रीत सिंह, अमित शाह एंड दर्शन राम, रंजन किशोर, भुवन कुमार, बलबॉन, राजश्री सरकार, बलबॉन। क्या अनुपमा मैम आपको बात समझ में आई? मैं हमने क्या बोला इतनी देर में? क्या आपको अनुपमा मैम बात समझ में आई? आइए कैमरा पे आइए। लास्ट का वो नहीं सुन पाई, शी इज टेलिंग। Yeah, so it's not about operating that software, that particular system। जैसे कि एक जेसीबी मशीन हो गया तो आप ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में रह जाओगे, देन दिस इज नॉट योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको वो चीज कैसे क्रिएट करनी है। एज अ क्रिएटर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऑपरेटर, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो बन गया उसको ऑपरेटर आपको नहीं बनना है। यू नीड टू क्रिएट थिंग्स। ठीक है ना? यानी जेसीबी और जेसीबी से 10,000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास यूज में आने वाला चीज बनाने की क्षमता आपके अंदर है। अगर आपने अपनी क्षमताओं को समझा, जो मैं कोशिश में लगा हुआ हूं, जो आपको बोल रहे हो ना कि मैं पूरा ज्ञान का मतलब प्रचुरता के साथ आपको जोड़ दिया हूं, तो मेरा पर्पस जो है ना बस इतना ही है ना कि मैं सिर्फ मुंह से बोलूं ना 300 करोड़, वो 300 करोड़ सच में आपके हाथ में आए, क्योंकि वो ताकत आप में
अपने अंदर पकड़ रखा है, आपके अंदर वो बात है। लेकिन ये बात मैं देख रहा हूं, आप खुद ही नहीं देख रहे हो ये बात, कि आपकी योग्यता बहुत बड़ी है। आपके पास वही आधार कार्ड है जो आधार कार्ड के लिए आप भूखे थे, सर्टिफिकेट के लिए आप भूखे थे, और आप चाहते थे कि आपको पूरे वो क्लास में 70 बच्चों में अव्वल का सर्टिफिकेट मिल जाए, स्कूल में और अपने कंट्री, अपने सिटी में आप एक टॉपर के रूप में गिनती आ जाओ। और वो आधार कार्ड इस बात का, वो यूआईडी आपके इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया आपको कि यू आर दैट पर्सन, जो 900 करोड़ का जो पूरा समुदाय है ना पूरे विश्व में, उसमें आप सिर्फ एक यूनिक पीस हो। क्या समझ में आया? तो यो यूआईडी जो सर्टिफिकेट के लिए आप परेशान थे कि आपको इस बात का प्रमाण कर दिया जाए कि आप एक अव्वल इंसान हो, एक डिफरेंट इंसान हो, तो ये यूआईडी जो आधार कार्ड है ना, इस बात का प्रमाण है। जिस सर्टिफिकेट के आप भूखे थे ना, लेकिन आप सर्टिफिकेट जब हाथ में मिल गया है तो आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि आपके जैसा दूसरा इस वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में, पूरे जगत में आपके जैसा नहीं है। और आपका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ है। इसका अर्थ ही है कि आप किसी खास पर्पस के लिए पैदा हुए हो, और वो पर्पस है जो सिर्फ आपका नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे जगत में करवाएगा। यानी आप वो चीज हो। तो ये अगर बात आप कनेक्ट कर गए और इस बात के झोल से बाहर निकल गए कि या खाने के लाले हैं, अगला दिन कैसे चलेगा उसके सोच में मैं पड़ा हुआ हूं, मेरा ए व्यापार है, मेरा बी व्यापार है, मेरा सी व्यापार है, मेरा डी व्यापार है, मैं अपने व्यापार को संभालूं, मेरे को तो वहीं पे समय नहीं मिलता है। अगर आप इस तरह की झोलपट्टी में फंसे रह गए तो वो जो बात आपकी ओरिजिनलिटी है वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। जैसा कि आज का मैंने वीडियो भेजा था ईगल वाला, किस किस ने उस ईगल वाले वीडियो को देखा है? और वो यहाँ पे प्ले कर सकता है, हम लोग प्ले कर सकते हैं ईगल वाला वीडियो। ड्राइव थ्रू। कौन कौन देख लिया? मी टाइप करें। शुभ को बोला जाए, शुभ आप उसे ड्राइव पे डालें वाला वीडियो को, जैसे कि हम लोग यहाँ प्ले कर पाए, या फिर वहां पर कोई प्ले कर सकता है क्या? सिंपल है, उसमें जो बातें बताई गई है ना वो सिंपल सा, जो मैं लिख के भेज रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, कि अब मुर्गा बनने का नहीं है चिकन से बदलो और ईगल में बदलो, है ना। चिकन एक तो बहुत ज्यादा उम्र उसका होता नहीं है, और चिकन आजकल आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। तो चिकन आता ही इसलिए है बाजार में क्योंकि वो बस आपका जो है ना डाइनिंग टेबल का हिस्सा बने। मेन बात पे आते हैं कि ईगल वो होता है ना जो 40 साल लगभग जब जी लेता है तब उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, और उस पंख में एक बोलते हैं ना कि अब वो उड़ने का जो है ना क्षमता, वो योग्यता से थोड़ा दूर हो जाता है वो। एज वेल एज उसका जो चोंच होता है, ईगल अपने चोंच से ही सारा शिकार करता है वो, है ना। उसकी चोंच में वो बात है जो ना खत्म हो जाती है, मतलब ना शार्पन द सॉ, एक आपने कहावत सुना होगा कि एक समय के बाद आपको अपना जो कुल्हाड़ी है ना उसको तेज करना ही पड़ता है, उसमें धार लगानी पड़ती है। तो ईगल वो सेम चीज करता है, ये कुदरत सिखा रहा है बातें हमें, और आपको सबको समझना चाहिए कि जो ईगल का उम्र है ना, लगभग हम लोग का उम्र के ऐसा ही है, 70 साल 60 साल यही उम्र होता है। तो 40 साल के बाद जो उम्र है ना, 35 साल 40 साल के बाद ईगल जो है ना भोथा हो जाता है। भोथा इन द सेंस, जैसे कि हम आप पे क्या सिखाते हैं कि एक 35-40 साल का जो उम्र है ना, लगभग आपको वाइफ का मतलब पता है, आपको अपने स्पाउस का मतलब पता है, स्पाउस किस तरह की चीजें हैं वो आपको पता है। जो एक्साइटमेंट होता है ना वो लगभग थम सा जाता है। बच्चे को आप समझ जाते हो कि बच्चे इस चिड़िया का नाम है, कुदरत मुझे इस तरह से पापा बनाया या मम्मी बनाई है। उस तरह से आप अपने जो लेन देन को समझते हो, अपने व्यापार को समझते हो, पैसे किस रेशियो में आ रहे हैं, किस रेशियो में जा रहे हैं, आपको अपनी 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 कार्य दक्षता पे जो भी इफ बट लेकिन परंतु होता है ना, वो सब आप पकड़ में आ जाती है। अब आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो बेसिकली। तो ये 40 साल के बाद अगर वापस से आपको ये मौका मिल रहा है, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस आपको ये सिखा रहा है कि रुक जा भाई, तू जहां तक जिस बुद्धि से आ सकता था आ गया, अगर इसके ऊपर जाना है तो तू ज्यादा अच्छा कर सकता है। इन कंपेरिजन ऑफ कि मैं उस नौसिखियों को सिखाऊं जो अभी 18-20 साल 24 साल 30 साल के हैं, मैं उसको सिखाऊं, उससे ज्यादा मेरा शोध मेरा रिसर्च मुझे बोलता है कि मैं उस पर काम करूं जो मिड कैरियर वाले लोग हैं, जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स। अगर मैं उन पे मेहनत करता हूं तो दो फायदा होगा कि उनको अपनी औकात पता चलेगी और उनको अपना तजुर्बा को इनकैश करने का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एज वेल एज
कि अगर एक गार्जियन, एक 40 साल का इंसान अगर फिर से अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, अपना बेस्ट वर्जन के साथ सामने आ जाता है, तो उसका घर अपने आप एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। मैं अगर किसी बच्चे को ट्रीट करता हूं, मेरी बात समझ रहे हो ना, अगर मैं एक 18 साल से लेके 30 साल के बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को मैं डेवलप करूं जो 18 से 30 साल का है, वो जितना बूस्ट करेगा सोसाइटी को, जितना प्रेरणादायक होगा, मुझे लगता है कि अगर मैं मिड कैरियर वालों को, यानी जो 40 साल से लेकर के 55 साल तक का एज है, 35 साल से 55 साल तक का जो एज है, इस एज के लोगों को मैं अगर नर्चर कर देता हूं और उनको एक नया इवॉल्वमेंट देता हूं, तो उनके पास वो तजुर्बा है ना जो देश दुनिया को चला सकते हैं। वो क्या समझ में आया? टाइप करें, देश दुनिया को चलाने का कैपेसिटी है इस 35 साल से 55 साल के लोगों में, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो। ये देश और दुनिया, घर तो और परिवार तो छोड़ दो, ये देश और दुनिया चलाने की औकात रखते हैं। इन्होंने इतना दुनिया देख लिया, इतना समझदारी आ गया, बस खाली उनको वो वाला फिलॉसफी चाहिए, उनको ऐसे लॉजिक चाहिए जिस लॉजिक से वो विहीन है, दूर है। उनको अभी भी डर लगता है अपने गैजेट से, वो मोबाइल से, वो कंप्यूटर से उनको डर लगता है। ऐसा डरने वाला कोई छोल ही नहीं है यहाँ पर, कुछ है ही नहीं जिसे डरने की जरूरत है। बड़ा इजी है हर चीज, क्योंकि आप करते नहीं हो तो डरते हो। टाइप कर दे, मैं करता नहीं हूं इसीलिए डरता हूं। डर का एक ही बात है कि मैं करता नहीं हूं इसलिए मैं डरता हूं। Fear, self-doubt, these all are the result of inaction only. है ना? जैसे हमारे यहाँ पे छावड़ा साहब बैठे हैं, जितेंद्र साहब बैठे हैं, और भी हैं, ये लोग करते नहीं है, डरते हैं। और डरते हैं तो प्रोकास्टिनेट करते हैं, फोन कॉल अवॉइड करते हैं, जो बोला जाता वो नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते हैं, मतलब जिस धार में बह रहे हैं उसी धार में आगे निकल जाते हैं। तो इनका क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं, पैसे दिए हैं, चीजों को उन्होंने लगा कि मैं खरीद लिया, अब मेरा हो गया, अब मेरा अपना मर्जी, मैं करूं ना करूं, मैंने आपको पैसे दे दिए, आप कौन होते पूछने वाले? भैया यही तो करते आए हो ना, यही तो संस्कार मिला है ना, कि किताब आपके घर में आ गई। जब तक किताब नहीं आई थी तो पापा मम्मी का सर खाए कि पापा मम्मी किताब खरीदना है, किताब आ गया, कवर अवर हो गया, अब वो बैग में ही पड़ा हुआ है या रेक सेल्फ में ही सजा हुआ है, आपको मतलब ही नहीं उसको खोल के देखना। उसकी मम्मी बोलती है, फिर पापा बोलती है, फिर डांटती है, फिर तो आप जाके किताब खोलते हो। अब फिर नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो ट्यूशन भेजना है तो ट्यूशन भी जाते हो। मतलब हर तरह का झोल झाल करने का आदत लग गया है। अभी आपने वो जज्बात आया ही नहीं कि एक मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे एक यूपीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करके मुझे एक एडीएम, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है। तो आपको समझ में आएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एक सर्जन बनता कैसे है। तो हम आपको वो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उतने सीरियस हो, अपने लाइफ को उतना आपने जी लिया, समझ लिया, जहां पर आप इन बातों को एकदम अपने अंदर बांध सको। क्योंकि आप अगर सही हो गए ना, तो आपका परिवार ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जिसको आप सही करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ABCDEFGH में इन्वॉल्व कर रहे हो, अरे कतई दरकार नहीं है। आप ही हो इंजन। आप अगर ज्योमेट्रिकली अलाइन हो गए ना, तो पूरा परिवार ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। आप ही वो स्विच बोर्ड हो ना, जिसपे स्विच है, बटन है, प्ले करूंगा तो वो पंखा भी चलेगा, प्ले करूंगा तो वो लाइट भी जलेगा। तो आप अगर ओके हो गए तो आपका परिवार अपने आप ओके हो जाना है। अगर आपका मिशन एंड विजन अलाइन हो गया तो परिवार का मिशन एंड विजन ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। ठीक है? तो अभी मेन बात पे आते हैं कि अभी क्या बचा। तो आपको क्या करना है? आपका जो बीक है उसे आपको खुद तोड़ना पड़ेगा। वो जो आपका चोंच है, that is, जो ब्लंट हो चुका है, you need to unlearn those things. तो उस वीडियो में साफ साफ बताया गया कि 4 महीना कम से कम लगता है जब वो अपने चोंच को खुद ही तोड़ता है, ठोक ठोक करके। ईगल खुद से अपने चोंच को तोड़ देता है। और 4 महीना जब वो बिना चोंच के, क्योंकि चोंच ही उसका मेन माध्यम है खाना को, मतलब नोच के खाने का, तो बहुत कम भोजन में, नहीं के बराबर भोजन में वो 4 महीना सरवाइव करता है। तब जाके उसका चोंच खुद डेवलप होता है, खुद निकलता है, क्योंकि नेचर का लॉ है, जैसे दांत टूटता है तो दांत निकलता है, वैसे ईगल के साथ भी ये बात है। तो वो होता है, और फिर जब उसके चोंच निकल आते हैं, तब उसी धारदार चोंच से वो अपने बदन के सारे पंखियों को तोड़ देता है, नोच डालता है, और उसके बाद फिर उसके नए पंख भी निकल आते हैं। तो 40 साल के बाद वो 6, 7, 8 महीनों की जो घनघोर तपस्या करता है ना, उस 40 साल के बाद, 35 साल के बाद का वो 8 महीना जो होता है ना, उसे फिर से वही उड़ान लेने की क्षमता डाल देता है कि वो वापस से 300, 350 किलोमीटर की जो उड़ान है ना,
1 घंटे में वो तय करने की क्षमता में आ जाता है, और वो वही शिकारी बन जाता है जो पहले दिनों में हुआ करता था। तो क्या आपको वो ईगल बनना है, वो चिकन से ईगल की तरफ मूव करना है, तो टाइप कर दे मी कि मुझे चिकन से ईगल की तरफ बढ़ना है। ठीक है। राजश्री भुवन, अनुपमा दर्शन, मी, सेठाराम मी। LMS आपके पास अलॉटेड है। हर एक वीडियो आपसे आपका कमेंट मांग रहा है कि आपने क्या सीखा। जो आपको सीख रहे हो उसके ऊपर वीडियो बनना ही बनना है, बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। अगर आप वीडियो नहीं बनाओगे तो जान जाओ आपका स्टोरी क्रिएट ही नहीं होगा। अगर आपको पता है कि आपका नीस आपका स्टोरी है, अगर आपने मेरे क्लासेस में इस बात को समझ लिया है कि आपका नीस क्या है, तो आपका नीस वही है जिस चीज को आपने पारंगत किया है, जिस चीज की एक्सपर्टाइज आप कैरी कर रहे हो ना, वही आपका नीस है। और नीस निकल के सामने आएगा ही उस वक्त जब आप अपने आप को खुद ही आईना में देखोगे। तो आईना का मतलब है कि जब आप बोलते हो ना, और जब फिर उसको प्ले होगा तो वीडियो के रूप में ही होगा। तो जब आप अपने स्टोरी को बोलोगे, जब अपनी बातों को बोलते जाओगे ना, क्योंकि आप जानते सब कुछ हो, क्योंकि आपने उसे कभी भी, मतलब आपने बोला ना कि आपने उसको जर्नल नहीं किया था, फिर लेजर नहीं किया था, दैट्स वाई आपके पास वो सब भारतीय होने के नाते वो सारा ज्ञान है ना जो मेरे पास है। मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया, और मैंने डॉक्यूमेंट करके उसे डायलॉग्स में, उसे स्क्रिप्ट में बदल दिया। अब वापस से आपकी बारी आई है, जो मैंने बोला कि मुझे चाहिए कि 80 मेरा हो और 20 आपका। यानी आपके अंदर आपके मोरल इथिक्स, आपके एक्सपर्टाइज आपके अंदर हुलाड़े मार रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से, अभी मैं सेम चीज देता हूं आप सभी को, क्या मैं वही सब्जी देता हूं, वही मसाला देता हूं जो आपको पता है, वही नमक वही तेल देता हूं, सभी के हाथ में सेम चीज रहेगा। अगर सबको बोला गया कि लो भाई आलू का भुजिया बनाओ, बहुत बड़ा काम नहीं है। जितने लोग हैं, क्या एक स्वाद निकाल के आलू का भुजिया बनाएंगे? सभी का स्वाद एक जैसा होगा क्या? कभी नहीं होगा ना। तो आपको मेन बात पे आना होगा कि क ख ग घ और ABCD और 1 2 3 4 ये बदलने वाली नहीं है, ये वही रहेगा। लेकिन आप उसे अपने विचारधारा के साथ जब अलाइन करोगे तो वो आपकी बातें होंगी, और वो आपके तरीके से आगे निकल के आगे बढ़ेंगी और लोगों को सेवा और नर्चर प्रदान करेंगी। क्योंकि आप कुछ लोगों को कन्विंस करते हो, हम कुछ लोगों को कन्विंस करते हैं, और बाकी के लोगों कुछ कुछ लोग, हर आदमी एक बहुत बड़ा समुदाय को कन्विंस नहीं कर रहा है, वो अपने कुछ लोगों को ही ये कर रहा है। एक जंक ऑफ पीपल है जो एक जंक ऑफ पीपल से ही नर्चर हो रहे हैं, पूरे दुनिया को नर्चर नहीं कर रहा है। तो आपको मेन बात समझना होगा कि आपका अपना मार्केट है। 900 करोड़ की आबादी में अगर आप उसका 1% देखो तो कितना हुआ? 9 करोड़। 9 करोड़ बहुत होता है सर। 9 करोड़ का 1% अगर देखोगे तो कितना होगा? 9 लाख होगा। अरे भाई 9 लाख का अगर 1% करोगे ना तो भी 9,000 होगा। 9,000 का भी 1% करोगे ना तो 900 होगा। 90। अगर 90 पीपल अगर डेली भी आपके झोले में गिरे ना कि मुझे आपसे कनेक्ट होना है, तो आप सोचो कि आपकी कहां आमदनी पहुंचेगी। अरे 90 नहीं, 9 क्लाइंट भी आपने डील किया ना। अगर आप रियल एस्टेट के हो, इंश्योरेंस के हो, जैसे कि मैम शेयर मार्केट की हैं, आप खुद ही बताओ कि डेली अगर 9 ग्राहक आपके झोली में गिर गया, तब तो आपकी औकात तो मर्सिडीज खरीदने की धड़ाक से हो जाएगी। क्या पंचाल साहब क्या बोलते हैं? अगर 9 पॉलिसियां अगर बिक गई एक दिन में, तो कहां है आपका गाड़ी? आप समझ रहे हो कितना बड़ा मार्केट आप कवर कर लोगे? अचानक से जादू हो जाएगा। मेन बात पे आओ। मेन बात पे काम नहीं किया गया ना, तो हर वक्त आप ऐसे ही विचलित रहोगे, भागते रहोगे जिधर तिधर जिधर तिधर, और कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्या चीज को करना है और क्या चीज को नहीं करना है, यही बात को पकड़ना है। और जैसे जैसे मेरे कोर्स के अंदर में आप बैठोगे ना, अपना समय बिताओगे, जहां तहां बोलते ना मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। अरे भैया अभी आपका पैर में चोट लग जाएगा तो आप काहे का बिजी हो भैया? आराम से बिस्तर पे बैठोगे बैंडेड लगा करके। तो आप क्यों भाग्य को बोलते हो कि आके आपको मारे? क्यों बोलते हो वक्त को कि आके मेरे पिटाई कर तो मैं रुकूंगा? अरे भैया इतना स्मार्ट तो खुद ही बन जा सकते हो कि यार मैं नहीं जा सकता हूं। जो सामने वाला फोन कर रहा है, जो आपको अपनी तरफ बोल रहा है, अरे मेरा तबीयत खराब है भाई, तू मत पूछ मेरे को क्या हुआ, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं तेरी बात सुन सकता। अरे भैया 9 दिन का स्ट्राइक कर दो ना।
मेन बात पे हो ना, अगर यहां से अगर चाह लोगे तो क्या नहीं है बॉस, हर चीज तो आपके हाथ में है। अरे जब वो सेक्रीफाइस ही करना है ना, वो ईगल से देख के सीख लो ना, वो 8-7 महीने में अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करता है। वही बात है, हर वक्त सभी के साथ है। कुछ नहीं करना है जनाब, पैसे अब कमाना मात्र उंगली का काम रह गया है। हर चीज आपके फिंगर टिप पे है। आपको ही ऑपरेट करने नहीं आता है, ना खुद को ना तो गैजेट को। आपके सामने वो अलादीन का चिराग पड़ा हुआ है, वो जो गैजेट है ना वो अलादीन का चिराग है। उसको सही बात बोलने से वो बोलेगा जो हुक्म है मेरे आका। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, यहां पर आपको पता है, यहां आपका भेजा को स्ट्राइक करता है ये बात कि वो मोबाइल नहीं है, वो अलादीन का चिराग है और वो बोलने के लिए तैयार बैठा है जो हुक्म है मेरे आका। आप ही को उसके भाषा को बोलने नहीं आता है। अगर आपको ये बात बोलने आ गया ना कि क्या मुझे उसको बोलने से वो क्या बोलेगा जो हुक्म है मेरे आका, वही आपको बोलने नहीं आता है। कब कहां किसको कितना क्यों और कैसे बोलना है, यही तो कला है। इसी का तो बचपन से आप खाते हुए आए हो और आएंगे आइंदा भी उसी का खाओगे। तो वक्त बदल गया, एरा बदल गया, सप्लाई एंड डिमांड बदल गया, फिर भी आप वही ले लाठी गुवार वाला सोच रहे हो मारने के लिए। धोखा वहां पर है। तो रास्ता आपको मैं कितना भी मखमल वाला दे दूं ना, अगर आपके अंदर आपके जूते में अगर कंकड़ है, आपके जूते में अगर कांच का टुकड़ा है, तो 4 कदम चलना मुश्किल है आपके लिए। चाहे मैं कितना भी मतलब मखमल बिछा दूं आपके रास्ते में, गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दूं, आपके जूते में अगर एक कांच का टुकड़ा है ना, तो आप 4 कदम नहीं चल पाओगे। अगर आपको मैं रास्ते में कितना भी कांच का टुकड़ा बिछा दूं ना, और आपको खाली पैर चला दूं, आपको एक जूता दे दूं, तो आप आराम से दौड़ जाओगे उस कांच के टुकड़ों पे, अगर मैंने आपको एक जूता पहना दिया। लेकिन मखमल बिछाने के बाद, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाने के बाद अगर आपके जूते में एक छोटा सा कंकड़ डाल दूं ना, तो आप नहीं 4 कदम चल पाओगे। तो मेन बात पे काम करोगे तभी होगा, अपने आप को सरेंडर करना ही है। वीडियो बनेगा तभी काम बनेगा। मैंने बोला है 20 वीडियो चाहिए हर दिन का आपसे, जो बोला उतना करके देख ले भाई। अगर नुकसान हो जाएगा तो जो बोलेगा हारने को तैयार हूं। आज के डेट में आगे बढ़ने का, आज के डेट में कमाल करने का और कोई तरीका नहीं है। आपको 2 बातें एकदम क्लियर बता दूं। पहला बात जिसका बहुत बड़ा वर्चस्व है कि मैं आपके इस काम का हूं, मैं आपके डैश इस काम का हूं, ये बताना है दुनिया को आपको। और ये बताने के लिए 6-7 महीना लगेगा आपको। आप अभी बोल नहीं सकते हो कि मैं अभी इस काम का हूं, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है नहीं जिससे कि आप लोगों को ये बात बताने के अधिकार में आओ। वो समय लेगा, मिनिमम तो 100 डेज लेगा। जब आप हमारे कोर्सेज के अंदर रहोगे तब आपको वो नर्चर करता जाएगा, वो अपने जाते में पीसता जाएगा। तब अंदर से जो होता है ना कि सागर मंथन से सारी चीजें निकली थी। तो जब हम आपको मथेंगे ना, जब हमारी वैल्यूज, हमारी बातें आपको मथेंगी, जब बोलते ना पंचकर्मा, किसको किसको पता है पंचकर्मा? तो पंचकर्मा का सिद्धांत क्या है? वो आपकी ओरिजिनलिटी से आपको कनेक्ट करता है। वो आर्टिफिशियल चीजें, मेडिसिन आपके अंदर नहीं डालता है। पंचकर्मा आपको घी पिलाता है, मधु पिलाता है, पानी पिलाता है, आपको डिटॉक्सिफाई करता है। तो पंचकर्मा जो है ना, वो विधि ऐसा विधि है कि आपके बीमारियों को ऐसे ही धो डालता है वो। तो अभी ये पंचकर्मा पद्धति यहां पर आपके साथ होने वाली, मैं आपकी ओवरवेलिंग करता हूं। लेकिन जब आप सरेंडर ही नहीं करोगे तो मैं ओवरवेलिंग किसको करूंगा? मैं इधर आपको ओवरवेलिंग करूंगा, फिर बाहर जाकर आप स्मोकिंग करोगे, मैं फिर इधर ओवरवेलिंग करूंगा, फिर जाकर के आप उधर कुछ और करोगे। यानी पॉसिबल ही नहीं है। आपका सरेंडर करना ही होगा। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको डाइजेस्ट होना ही होगा, अन्यथा आपकी काम का कुछ भी नहीं है। तो बहुत जबरदस्त बातें समझना होगा कि आपको करना ही होगा, आपके पास विकल्प नहीं है। ठीक है ना? हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड है, हर चीज एकदम मतलब इतना क्लियर किया हूं, इतना क्लियर किया हूं ना कि अगर मुझे लगता है कि अगर ये चीजें जो मैंने अभी किया 2022, 23, 21 में मैंने हासिल किया, अगर ये क्लैरिटी मेरे को मेरे उस समय मिल चुकी होती जब मैं अपने करियर के शुरुआत में था, 1996 में, 1995 में, 1998 में, 2000 में, तो इस 20-22 सालों मैंने मानवता की कितनी बड़ी सेवा कर दी होती। वहां पर ये पकड़ में नहीं आया, जबकि मैं वहां से अपने आप को बहुत सजग रूप से आगे लेके जा रहा हूँ, हर चीज को चैतन्य होकर आगे लेके जा रहा हूँ, चीजों को बहुत करीब से समझना, ऑब्जर्व करना। तो ये सारी बातें उसमें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का धार नहीं था, ये यूट्यूब और ये गूगल नहीं था। ये यूट्यूब गूगल इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना बड़ा आशीर्वाद है ना समाज और सोसाइटी और मानवता के लिए। अगर यहाँ पर भी कोई आदमी बोल रहा है ना कि मेरे पास पैसों की किल्लत है, मेरे पास समय की किल्लत है, अरे विश्वास मानो, ऐसे सर पे हाथ दे के ठोको, कर्म अभागा है वो इंसान। और उसके बाद जबकि मेरे जैसा इंसान अब बाजार में अवेलेबल है। तो बॉस अपने आप को गाली मत दो,
इतना सहज हो गया है, इतना सहज हो गया बड़ा से बड़ा पैसा कमाना कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। बस थोड़ा सा संयम रख करके अपने जो जो ऊपर में क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा हुआ है ना, पूरा जो रंगीन हो गया है ना जो आवरण, उसको थोड़ा सा छोड़ दोगे ना। जैसे भी कोरोना काल में आपने जो महसूस किया ना कि कुछ लोग, सब लोग अपने घर में थे तो नदियां साफ हो गई, वातावरण साफ हो गया, पशु पक्षियां जहां भी थी वो अपने मन का कर रही थी चहलकदमी। थोड़ा सा शांत कर दोगे तो चीजें हो जाएंगी। तो प्लीज सारे लोग टाइप कर दें पीस। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा शांति दे दोगे ना तो गाड़ी वहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, है ना। पीस एकदम याद रखना भैया, पीस अगर हो गया आपके साथ तो बस काम बन जाएगा। आपको भागना नहीं है बॉस, जहां तक भागना नहीं है प्लीज। आज भी मेरी एक दो लोगों से फोन पे बात हुई, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। मैं बोला है तू भाग रहा है, तेरा सीईओ और तेरा मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर भी भाग रहा है क्या? बोला नहीं सर वो तो नहीं भाग रहा है। तो फिर तू क्यों मूर्ख की तरह भाग रहा है भाई? तू जब इतने बड़े सिस्टम के अंदर आ गया, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट के अंदर आ गया, यहां पर आने के बाद तू पैसे दे दिया, वो पैसे जिसके लिए तू पे कर रहा था कि मेरे पैसे नहीं है सर, थोड़ा इतना देता हूं अभी, थोड़ा फिर बाद में दे दूंगा। तूने 3 किस्ती 2 किस्ती में पैसे दिए भाई, उसके बाद जब तू अपनी लाचारी बताया फिर तू आज वही काम कर रहा है, कितने पैसे मिल जाएंगे? तो तेरा मालिक, तेरा सीएम, तेरा जीएम क्यों नहीं भाग रहा है? तो मेन बात है ना कि आप बड़े हो, आप काबिल हो, लेकिन आपको इसका कोई भान ही नहीं है कि आप एक राजा के बच्चे हो। और शुभ वरदान में आने के बाद एक माँ के गोद में बैठे हुए लाल हो आप। तो माँ के गोद में बैठा हुआ लाल के सामने कितना बड़ा भी जहमत आ जाए ना तो उसको डर लगना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप डर रहे हो तो मूर्खता मेरे पे हावी है या फिर आप पे हावी है? तो आप अगर माँ के लाल हो और माँ के आंचल में भी हो, उसके बाद भी डर रहे हो, तो बस फिर भगवान ही मालिक है। किसको किसको फिर से बलवान हो गया? ठीक है, सिंपली आप लोगों को मैं इसीलिए इस सारी बातें बताया कि आपके वीडियोस बनने चाहिए और जो बोला जा रहा है वो सरेंडर करना पड़ेगा। एलएमएस आपके पास है, कोर्सेज कंप्लीट करें, नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करें। क्योंकि मैं बोला हूं 3 दिन की पढ़ाई ही एलएमएस पे जो अभी आपको है ना, वो 3 दिन की पढ़ाई है। 3 दिन में जितना आप कंज्यूम कर लेते हैं, चौथा दिन उसके बाद उसको पलट के देखने का नहीं है। 3 दिन ही कंज्यूम करना, वो 3 दिन का ही डोज है जितना भी है वहां पर। ये अलग बात है कि मैंने उसे 90 दिनों में क्रिएट किया है, लेकिन वो आपके लिए सिर्फ 3 दिन का ही है। अगर 3 दिन से ज्यादा समय वहां गुजारे हैं मतलब फिर आप स्लो हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हर एक दवाई का ना एक डोज होता है, दवाई का बोतल नहीं उड़ेल दिया जाता आपके मुंह में। आपको ठीक करना होता है ना तो एक एक परमात्रा दी जाती है। यहां पर भी आपको परमात्रा दी जा रही है। मैं दवाई का बोतल दे दिया आपको, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि आप अपने हिसाब से पिए जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको जो बोला गया उसको समझना होगा कि 3 दिनों में आप जितना ले लिए 3 दिनों में ही लेना है। दवाई 3 दिनों के बाद नहीं लेना है, अतड़ी जला देगा आपका। समझ में आया ना? 3 दिन में दवाई जितना लेने बोला गया उतना ही लेना है। 3 दिन में आपने 2 वीडियो कंज्यूम किया, 3 वीडियो कंज्यूम किया या 12 वीडियो कंज्यूम किया, बस स्टॉप। तुरंत जाकर के 70,000 पेमेंट कीजिए, जाकर के नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कीजिए। और शिफ्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, ब्रांडिंग मॉडल, नीश क्लैरिटी, करिकुलम डिजाइन, एवरीथिंग जो वहां पर दिया गया है आपके लिए, उसको तुरंत पारंगत कीजिए। क्योंकि अगर पारंगत हो गया उसमें और 1 सप्ताह से 21 दिन लग गया तो आप पूरी तरह से जो है ना, एक बोलते ना जाइंट की तरह, एक नया मतलब बोलते ना गोद में एक ऐसा हो गया ना बच्चे का, वो वाला बच्चा आ जाएगा जो अब उसमें पूरा मोहल्ला खेल सकता है। अभी 21 दिनों तक बच्चा माँ के गोद में है, अभी वो बाहर के लोगों के टच में नहीं है। किसको बात है, किसी घर में ऐसा माना जाता है कि बच्चा 21 दिन तक किसी के पास नहीं जाता है, सिर्फ माँ के पास रहता है, अकेले रहता है। आप लोग की तरफ भी ऐसा चलता है कि? हमारी तरफ तो ऐसा ही चलता है। हमारे घर में कोई बच्चा होता है ना तो वो 21 दिनों तक कुआं पूजा होता है, उसके बाद ही फिर वो सोसाइटी के लिए वो बच्चा अवेलेबल होता है। नहीं तो वो बच्चा सिर्फ माँ के पास रहता है और उस जगह पे रहता है जहां पर वो उसको कोई ज्यादा टच वच ना करे। आपके इधर भी होता है क्या? तो अपना इधर है। तो आपको ये 21 दिनों के अंदर में उतना अपने अंदर में ताकत ले आना है कि अब आप जब बाहर में निकलो ना तो लोग आपको खुद ही बोलेंगे ये कोई नया आदमी है, ये कोई नया इंसान से बात हो रहा है। ठीक है ना? तो ये होगा इधर 3 दिन और इधर 18 दिन, 21 दिन का मामला उसका फिट है। लेकिन आपके पास पैराशूट लैंडिंग का कैपेसिटी होना मांगता है, बस पैसे चाहिए आपको। बिना पैसों के आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि माथा काम ही नहीं करेगा। माथा व्हेन पीपल पे दे पे अटेंशन, पैसे लगेंगे तभी आप काम कर पाओगे, पैसे नहीं लगेंगे तो काम ही नहीं। सोचोगे पार्शियल पेमेंट कर दे, ये कर दे, आप सब कुछ करोगे। मैं
हर चीज एग्री कर जाऊंगा, लेकिन तबाह आप हो जाओगे, आप ही नहीं कर पाओगे। हर चीज एक दूसरे का परिपूरक है, हर चीज एक, कुदरत को आप ठग ही नहीं सकते हो। कुदरत जो है ना, आप उसको बोलो कि मेरा चाय गर्म कर दे, मैं शाम में तेरे चूल्हे में लकड़ी डालूंगा, ये कुदरत आपको चाय गर्म करके देगा ही नहीं, उसको पहले लकड़ी चाहिए। लकड़ी जलेगा तो चाय गर्म करेगा वो। मेन बात पे आइए, तो ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। अभी आप समझ रहे थे ना 369 वाले लेसन में कि तरंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हर चीज वाइब्रेशन पे है, हर चीज एनर्जी और तरंगों पे ही है। एकदम समझना होगा बात है कि सब चीज तरंगों पे ही है। आपके मन में जो विचारधारा उत्पन्न हो रहा है ना, वही आपको बिल्ड कर रहा है। आप किन से, आप उतने पायस हो क्या? अगर उतने ईमान से आप बोलते हैं ना कि मुसलमान वर्ड कहां से आया, कि आप कितने मुसल्ले ईमान हो। बहुत पाकीजगी के साथ ये शब्द का इस्तेमाल होता है। ये अलग बात है कि हम लोग देखने का हरा रंग बोल दिए मुसलमान का, तो केसरिया रंग बोल दिए हिंदू का। लेकिन मेन बात पे आइए ना, तो आपको मुसल्लल होना पड़ेगा अंदर से, है ना। पाकीजगी आपके अंदर हुलाड़े मारने चाहिए, तब जाकर के ये जिन्विनिटी काम करेगी। अगर आपका मोटरसाइकिल पाकीजगी से नहीं बना होगा, मुसल्लल से आपका अगर मोटरसाइकिल और व्हीकल और आपका जो गैजेट है, अगर वो आप जो गैजेट इस्तेमाल करते हो अगर मुसल्लल नहीं होगा, तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे? वो तो हर जगह अटकेगा, चलेगा ही नहीं, हैंग कर जाएगा। तो आपको मुसल्लल होना पड़ेगा। जब आपका गैजेट मुसल्लल हो रहा है, तो आपको मुसल्लल नहीं होना है क्या? मेन बात पे आइए ना, आप ही नहीं हो, आप ही डामाडोल हो और सोच रहे हो मेरा हर चीज सही चले। अरे भैया, आप ही का प्रतिबिंब है, आपका जो भी है, व्यापार या रिश्तेदारी या रोजगार या पैसा। आप जितने इवॉल्व होगे, आपका बैंक अकाउंट उतना ही इवॉल्व होगा। आप जितने ज्यादा पनपोगे, आपका बैंक अकाउंट आप ही का रिफ्लेक्शन है। आप जो करते हो ना क्रियाकलाप, उसी का रिफ्लेक्शन आपका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट किसी अफर्मेशन से थोड़ी ना खुला है। वो अफर्मेशन आपने लिख दिया, सुबह शाम सूरज भगवान की उपासना कर ली, तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, ऐसे नहीं, कर्म करना पड़ता है। तो कर्म से होगा ना वो। तो कर्म करने में अगर आज जहां हो, थोड़ा सा उसको डिग्री से मिला लोगे ना, ज्योमेट्रिकली उसको अलाइन कर लोगे, तो वो अपने आप ज्यादा भी हो जाएगा। चीजें करनी नहीं पड़ती हैं, चीजें बाय डिफॉल्ट होती है। ये कुदरत का ही ऐसा बनावट है। तो कृपया मेरी बातों को कनेक्ट करें और सरेंडर करें, मेरा आपसे गुजारिश है। हम बहुत शिद्दत से अपनी चीजों को अलाइन किए हैं और आपके लिए लेके आए हैं। हम यहाँ पे भीड़ इसलिए नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि हम आप पे बहुत ज्यादा गहरा नजर से देख पाए आपको। हम यहाँ भीड़ नहीं लगाते, हम 20, 25, 30, हार्डली 35 लोगों के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और हम इस स्पीड को इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ना कि 20 से 35 लोगों को ही हम बहुत अच्छा से ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए हम इसी स्पीड को लेके आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं आपके पूरा पैना नजर रखूं और आपको नर्चर होता हुआ देख सकूं जहां आप। नहीं तो अगर दुनिया जैसे कर रही है, अगर मैं चाहूं तो मैं भी वैसा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पता है कि मैं बहुत ज्यादा क्वालिटी के साथ आगे जा रहा हूं चीजों को लेकर के। लेकिन फिर वही हो जाएगा ना, छू छू के निकल जाने वाली बात हो जाएगी। लॉक एंड की का खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं हम, लॉक एंड की का खेल नहीं खेल रहे हैं। हमें आपको बिल्ड करना है। मैं अगर आपको पूरा ध्यान दूंगा, तभी मैं आपको मदद करके उठा के ले जा सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करा सकता हूँ। नहीं तो फिर पैसे लेने का पर्पस रहा तो मैं पैसे ले लेके, जैसे दुनिया लोग कर रही है ना, कुछ नहीं, कहीं पर कोई रिजल्ट नहीं है, लोग परेशान है पैसे दे करके। कम से कम यहाँ पर तो है ना, 4 लोग बोलते तो है कि नवीन सर आप जो कर रहे हैं वो इतना, कहीं पर किसी को नहीं कोई बोल रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है। आप लोग अगर कोई आके कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। जो नए लोग हैं आइए। एक दर्शन राम साहब हैं। आप सर पहली बार आए ना हम लोग क्या? देखिए मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपका परिचय दे दर्शन साहब, कहां से आप? आपका अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही जी है। जी, नमस्कार सर। मैं उत्तराखंड से हूँ, चमोली गढ़वाल से, और मैं फार्मर हूँ। और काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ आपका ये जो चल रहा है अशुभ वरदान का। तो क्या है कि हमको ना मतलब चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मुझे लगा और मैंने ज्वाइन किया नहीं है, मैं करने वाला हूँ कुछ दिन में। आज मैंने देखा कि लिंक अभी आया हुआ है तो मैंने ज्वाइन कर लिया, आज मैं खाली था इसलिए। जी सर। क्या करते हैं आप फार्मर के सिवा, और क्या है आपका? फार्मर के सिवा सर मैं थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेता हूँ, पहाड़ में यही काम है। और मतलब इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे भी कुछ अच्छा करना है जीवन में, इसलिए। ठीक है, आप संपर्क में रहिए, आपकी बहुत मदद मिलने वाली है आपको। चमोली से आपके जो गैस वाले हैं ना, गैस एजेंसी में,
सतीश चौहान। जी सतीश जी सतीश मित्र हैं सर चौहान, मेरे। हाँ वो बहुत एक्टिव जी जी मेंबर है जी हमारे आगे, चमोली के वो भी हैं, आप लोग जानते होंगे, छोटा सा शहर है ना। मैं चमोली वमोली जी घुमा सर हुआ हूँ, उत्तराखंड घुमा हूँ मैं तो। जी सर मित्र हैं, सतीश जी मित्र हैं मेरे। हाँ हाँ। जी जी। और हैं वेद प्रकाश जी हो गए है ना, अमरप्रीत सिन्हा, वेद, और कौन हो गया, और कौन कौन है, भुवन सर। भुवन जी आपसे थोड़ा बात हो जाती। भुवन साहब सामने आ सकते हैं क्या आप? जी सर, सामने ही है। आपका कैमरा नीचे करिए थोड़ा सा, आपका आसमान दिख रहा है। थोड़ी हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। नमस्कार जी भुवन साहब, जी क्या सर, करते हैं, नमस्ते। क्या करते हैं आप बताइए। मेरा एक दवा का दुकान है सर। हाँ। बिजनेस करता हूँ मैं, उसी में इन्वॉल्व हूँ अभी। हम्म बच्चे हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हम्म। मैट्रिक में हैं जी। एकदम सिंपल सा मैसेज है, अगर आपको वाकई में अपने जीवन में लग रहा है कि आप वाकई में आप अपने मिड एज करियर में हैं, तो तुरंत ही अपने आप को शिफ्टिंग दीजिए, अपना गियर बदलिए। अन्यथा जिस गियर पे गाड़ी चल रही है ना, वो गाड़ी रुकनी ही है, वो गाड़ी आगे नहीं भागेगी, आगे जाने के लिए गियर बदलना ही होगा। तो तुरंत ही जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास सर। अरेंजमेंट है ना, उस अरेंजमेंट का लाभ उठाएं, ठीक है, और देर ना करें प्लीज। जितेंद्र कश्यप साहब। नमस्कार सर। जी कैमरा नीचे कर लें थोड़ा सा। जी जी। जी बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं मथुरा से हूँ, मथुरा यूपी। जी। सर मैं अभी फिलहाल फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक जॉब करता हूँ। उसके हम्म अलावा मैं पार्ट टाइम इंश्योरेंस का भी वर्क करता हूँ। हम्म। लेकिन सर अभी कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा, काफी कर्जा भी हो गया है, क्योंकि जॉब में इतनी आमदनी नहीं है, खर्चे आजकल बहुत ज्यादा है, लोन की लायबिलिटीज एक्चुअली बहुत ज्यादा है। तो मैंने एक कोर्स भी लिया था सर अभी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जिसमें वो फेसबुक लीड जनरेट करना वगैरह सिखाते हैं, लेकिन अभी उतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं पा रहा है सर। हम्म। ठीक है, तो अभी आप हमारे यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा, आप अब कुछ भी हमारे यहाँ जानते हैं हमारे यहाँ क्या चल रहा है? जी सर, अभी आज क्लास ली है मैंने, उससे पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था, हम्म तो लग तो अच्छा रहा है, काफी अच्छा लग रहा है सर। आज का वीडियो मैं पूरा नहीं देख पाया, बिकॉज अभी मैं ट्रैवलिंग में था, बाइक चला रहा था, तो वॉइस आ नहीं पा रही थी प्रॉपर। तो फॉर्चुनेटली अभी आपने अनम्यूट किया और अभी मैं बिल्कुल लेके बैठा था जस्ट अभी। ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखिए, जैसे कि जानकारियां मिले, और अगर आप सक्षम हैं तो पेमेंट करके अंदर आइए और तुरंत ही चीजों को अमल में लीजिए। अगर वाकई में पैसों की किल्लत है ना, तो समझिए पैसा आपसे कुछ चाहता है। आप तो चाहते हो पैसा, पैसा भी आपसे कुछ चाहता है। अगर आपने ये बात कनेक्ट कर लिया ना कि पैसा भी मुझसे कुछ चाह रहा है, तो तुरंत गाड़ी चल जाएगी आगे, है ना? ठीक है। एंड अ मैसेज हियर फॉर एवरीवन कि जैसे अभी अभी आपने अपनी सिचुएशन बताई कि लीड जनरेशन का कोर्स लिया था आपने, सी आप कितनी भी टेक्निकल चीजें कर लो, अगर ये वाला जो टेक्निकल थिंग है दैट इज यू, अगर वो अलाइन नहीं है तो आप किसी भी चीज को ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू अलाइन एंड वर्क अपॉन। पीपल कनेक्ट विद द पीपल, सारे लोग टाइप करते कैपिटल लेटर में, पीपल कनेक्ट विद द पीपल। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जरिया हो सकता है, टेक्नोलॉजी जस्ट अ मीडियम, मीडियम हो सकता है, वो जरिया हो सकता है, ठीक है ना? पीपल कनेक्ट विद द पीपल, लोग लोग से ही जुड़ेंगे, इसमें रोबोट्स कुछ नहीं कर सकता है। पीपल कनेक्ट विद द पीपल। आपको अपने ग्राहक को, जो बोलते हैं ना ग्राहक भगवान है, वो आपको हर वक्त समझना होगा। अगर आपने ग्राहक को देवी का देवता का स्थान दिया है, तो उसके प्रति किस तरह के भाव रखने हैं ना, वही होगा। अगर आप प्रॉफिट काटने के चक्कर में रह गए कि जैसे तैसे मैं बेच के निकल जाऊं, समझा के निकल जाऊं, फंस जाओगे। अब युग जो है ना, सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल का है। अब जो युग है ये सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल का है। यहां पर साइलेंस स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी हरकतें बोलती हैं, ठीक है ना? आपको हर बात बोल के समझाने की जरूरत नहीं है। जमाना बहुत समझदार है, आपको खुद ही पता है कि आप कितने समझदार हो, ठीक है ना? तो योर साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। याद रखिएगा, आपकी हरकतें बोलती हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना,
वो मासूम बच्चे की तरह होना चाहिए जो आराम से खेल रहा है और एक कोबरा चल के आ गया और उसके बगल में वो भी खेलने लगा। ना तो कोबरा को उस बच्चे से डर लगा, ना उस बच्चे को उस कोबरा से डर लगा। तो ये वाला जो है ना उसी वक्त होगा जब यहां कुछ नहीं होगा। यहां पर अगर इबट लेकिन परंतु रहा ना तो कोबरा डरेगा बच्चे से, बच्चे को भी तकलीफ होगी और बच्चे को समझ में नहीं आएगा कुछ क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन आपको मेन बात पे आना होगा, अगर वो नहीं रहा, नॉर्मल रहा, तो वो पूंछ के साथ खेलेगा, वो कोबरा को हाथ में लेके वो बच्चा खेलेगा। वो 1.5 साल का बच्चा जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोबरा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बाइट करना है, वो कोबरा उस बच्चे के साथ ही खेलेगा। तो एकदम मेन बात पे आ जाइए, इनोसेंस वर्क। इट्स द एनर्जी दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, एकदम याद रखिए, लिख लीजिए जो मैंने भी बोला, इनोसेंस वर्क्स, इनोसेंस वर्क्स। सर लोग लिखिए, ये सब वो बातें मैं आपको दे रहा हूं ना, ये मतलब सिर्फ तजुर्बा से आ सकता है और आप कहीं से पढ़ के पांडित नहीं कर सकते इसे। आप सिर्फ एक ही बात याद रखना, इनोसेंस वर्क। सारे लोग टाइप करें इनोसेंस वर्क। because once you start that you are very smart and you feel that up you know everything and you are very smart, then only things start to fall apart. तो यहाँ पे smartness काम नहीं आएगी। in a sense work, yeah. गैजेट, टेक्नोलॉजी, हर व्यवस्थाएं आपको मदद करेगी आपकी स्पीड में। जैसे व्हीकल आपका मदद करता है ना, आपकी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन ऑपरेटर आप ही हो। अगर आपने ढंग से नहीं गाड़ी चलाई ना तो जाके किसी में ठोक सकते हो। आप ही हो सब कुछ। तो गाड़ी होना बहादुरी नहीं है, आपका काबिल होना बहादुरी है। आप में अगर काबिलियत होगी ना तो कितने बार बिना गाड़ी के भी आप जो है ना पगडंडी के रास्ते से वो वाली जो है ना, जैसे बोलता ना कि वो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था, वो वाला दशरथ माझी हो जाओगे आप। ठीक है ना, यहां से अगर चले जो हम बता रहे हैं उसको जहन में जगह दिए तो काम बनेगा। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आइए कुछ पिक्चर वाइज देख लें क्या करना है। ठीक है ना, और क्योंकि आज पर्व त्योहार का भी दिन है, बहुत सारे लोग अब्सेंट है, बहुत ज्यादा ही लोग आज अब्सेंट है। ठीक है ना, तो आपको पता ही है। I'll show you the pillars of this of your execution in the online world. Let me just take you to the pillars, and here it is. The 5 C's. Yeah. Can you all see it? अच्छा, और मैं एक आपसे विनती करना चाहूंगा, विनती ही कर सकता हूँ, मेरा जो क्षेत्र है ना उसमें मैं आपको विनती और अनुरोध ही कर सकूंगा कि आप लोग ग्रुप में जो भी मैसेज मिल रहा है ऑडियो या वीडियो, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, अपने इमोजीज दे करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जिससे हमें पता चले ना कि आपके कान को बात गया है। कम से कम हम जो बोलते हैं एटलीस्ट आपके लिए बोलते हैं, या फिर जो भी व्यवस्था आप तक पहुंचाते हैं, हमें रिवर्ट मिलना चाहिए कि आपने कुछ उसको सुना या नहीं सुना, या आपने प्रतिक्रिया दिया। अगर आप ये कमेंट नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं करोगे, देखो मैं वीडियो बनाने की बातें करता हूं बार बार, इसका सीधा सा अर्थ ये है ना, आप मेरे नजर पे चढ़ोगे कब, या फिर किसी के नजर में चढ़ोगे कब, जब विजिबल होगे तभी तो सर। आप अपने अंदर में रह जाओ इंट्रोवर्ट हो करके, तो आप किसी के नजर पे चढ़ोगे नहीं। आपकी विजिबिलिटी ही अब का युग है, जब आप जितने ज्यादा विजिबल होगे उतने ज्यादा ही, जितना दिखोगे उतना ही बिकोगे। जब जितना दिखोगे उतना ही बिको वाली फिलॉसफी पे दुनिया चल रही है, और आपने इस बात को नहीं समझा, आप अपनी बातों को रिएक्ट नहीं किए, अपनी बातों को आपने विजिबलाइज नहीं कराया लोगों को, गई भैंसिया पानी में, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है। मैं बार बार सिर्फ जो बातें कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। कृपया दया करें, खुद पे दया करें। आप ही वो इंसान ने पूरे संसार में ना जो किसी की मदद कर सकता है, तो एक इंसान खुद ही है। हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं, बाहर के लोग सिर्फ निमित्त होते हैं। अगर मदद होगी तो आप अपनी ही मदद से आगे बढ़ोगे, हमारी मदद से आगे नहीं बढ़ोगे। किसको किसको फिर से बल्ब ऑन हुआ, टाइप कर दे बल्ब ऑन, कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 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 आप ही का हाथ होगा उसमें, और किसी का हाथ नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान का कमी कभी नहीं था बाजार में, ज्ञान का कमी कभी नहीं था बाजार में। आप ही ने नहीं किया या फिर आप ही ने किया, ठीक है ना।
ऊपर वाला जो देवता है ना, भगवान जो है ना, वो आपको कभी नहीं आएगा मिलने के लिए, हे देख मैं भगवान जी हूं, पहचान रहा है मुझे क्या, चल मैं तेरा नैया पार लगा दूं। नहीं, वो कोई ना कोई जरिया बनाएगा, वो कोई ना कोई नाव बना देगा आपके लिए और बोलेगा चल बैठ के निकल ले बेटा। कभी हेलीकॉप्टर भेज देगा, कभी नाव भेज देगा, कभी बैलगाड़ी भेज देगा आपके लिए और बोलेगा ले सवार हो जा और निकल ले बेटा। वो आपको खुद नहीं बोलेगा हे पहचान मुझे, मैं हूं, अरे मैं हूं वही बाबा ऊपर वाला, आ चल 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 तुझे आगे ले चलूं। नहीं, वो कोई ना कोई जरिया बनाएगा। क्योंकि भगवान जिसे आप बोलते हो ना, तो ये भारत की धरती है, यहां पता है ब्रह्म कौन है। ब्रह्म सभी के अंदर है, आत्मा सभी के अंदर है, और हम सभी अहम ब्रह्मा अस्मि हैं। हम सभी ब्रह्मांड को अपने भीतर लेके चल रहे हैं। और जैसे आपने जाना कि 9 जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और 0 जो सबसे निम्नतम है, वो दोनों एक ही है। अगर रिप्लेस कर दिया जाए 360 डिग्री और 0 डिग्री कहीं दो जगह नहीं, वो एक ही जगह है। ठीक है ना। तो मेन बात पे आइए, आप जिसे बाहर टटोल रहे हैं ना, वो बाहर नहीं है, बाहर जरिया है। बाहर में सेब है, बाहर में एप्पल है, बाहर में प्याज है, बाहर में मिर्चा है, बाहर में जरिया है। सब कुछ आपके अंदर है। वो मिर्चा भी खा लोगे तो भी आप इंसान ही रहोगे, घोड़ा नहीं बन जाओगे। और वो एप्पल भी खा लोगे तो आप कोई आबे, मतलब उसको बोलते हैं ना कि आप कोई महिषासुर नहीं बन जाओगे, आप इंसान ही रहोगे। तो वो एप्पल हो चाहे मिर्च हो, खाओगे जो भी आप वैसे ही। आप मुर्गा खा लोगे तो भी वैसे ही रहोगे, मटन खा लोगे या फिर बोफेलो खा लोगे तो भी वैसे ही रहोगे, इंसान ही रहोगे आप। तो मेन चीज पे आओगे तब आपको समझ में आएगा कि सब कुछ आप ही से होना है, आप ही सब कुछ हो, बाकी सब जरिया है। तो आपका एक्टिव होना और नहीं होना ये सिर्फ आपके सराउंड से सराउंडेड जो व्यवस्था उससे पॉसिबल है। तो सराउंड से सराउंड को वो अभी हमारे अंदर में जो हमने एलएमएस पे दिया हुआ है, वहां से सब क्लियर होगा कि हम आपको कैसे जान मारते हैं। कौन कौन हमारे एलएमएस पे अपना आपको मार चुका है और अपना रीवर्थ करवा चुका है। क्या अनुपम, आपने वो सब चैप्टर कंप्लीट कर लिया जहां पे मैं आपको मरने की बात कर रहा हूं और फिर वहां से रीवर्थ करने की बात कर रहा हूं? तो वो सब आपको वहां अवेलेबल है। वहां से आपको हम जान भी मारेंगे और फिर बोलेंगे अब आप अपने जीवन को समझिए। यहां से आपको यानी एक स्टोरी अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, एक हरकतें से आप बहुत ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो स्टॉप ना, री राइट योर स्टोरी अगेन। कौन बोलता है कि वो सड़ी हुई स्टोरी के साथ आगे बढ़ना है? खत्म कर देंगे और नई स्टोरी लिखेंगे, नया पेन नया कागज से स्टार्ट करेंगे। कोई रोकता है क्या हमें? कोई नहीं रोकता है। करने का मोल है। तो करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो हम आपको बूस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा बेनिफिट लीजिए और आगे बढ़िए। अपने पे दया कीजिए, मेरा निम्र निवेदन है। जो बोला जाता है ना, वो बहुत 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 जरूरी है आपको करना। अगर आप करने लगे तो गाड़ी को ठेलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही पेट्रोल का काम करेगा और आपको आगे लेके जाएगा। प्लीज। ऑल राइट मैं नाउ अभी जितेंद्र साहब को देख रहा हूँ, अयोध्या वाले सर को। आप इतना देर से कैमरा कहाँ रखे थे? अभी एक झलक देखा मैं आपका। सभी को एक साथ लाना भाई कैमरा में, सभी लोग ना कैमरा ऑन करें। सर देखिए, मेरा नजर आप पे पड़े, ये बहुत बड़ी दया है यार। आपको समझना होगा कि मेरा दिमाग आप लोग को पूरा लेके चलता है। मैं दिन रात सोता भी हूं ना, तो आप ही लोग के बारे में इमेज करता रहता हूँ। ठीक है ना। आप लोग अगर मेरे से बचेंगे ना, तो बस वैसा ही होगा जैसे स्कूल में हुआ था। आप अपने टीचर से बच के भाग रहे थे जिधर जिधर, और बस वैसे ही रह गए, एवरेज रह गए। मास्टर हमेशा चाटू ही नजर आएगा आपको, क्योंकि यही फितरत रहा है। ठीक है ना। तो बचिए मत, अभी विजिबल कीजिए खुद को। जितना ज्यादा हरकत करेंगे ना, उतना ज्यादा बरकत करेंगे। और मैंने पिछला 2 क्लास में ही बोल दिया था कि मैं हनुमान जी वाला और भीम जी वाला एक एपिसोड पे प्रोग्राम बनाने वाला हूं। जब हनुमान जी का पूंछ बिछा के वो बैठे हुए थे और भीम उनका पूंछ को हटा नहीं पाए थे, तो फिर वहां से उनका गुरु शिष्य का नाता बना था। ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ एपिसोड बनाना है आपके लिए, वो भी मैंने वीडियो काट के रखा हुआ है बनाने के लिए। तो आप लोगों को मेन बात पे आना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता, हरकत में बरकत है, आप जानिए। और आपकी वीडियोस बनने चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा फिर से कि वीडियो बनना है और आपको विजिबल होना है। अगर आप विजिबल होंगे तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा आपके ख्याली पुलाव से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है वो विजिबिलिटी है। आप जितना ज्यादा दिखोगे, वहीं से उम्मीदें जगेंगी कि आप बिकोगे। तो आप जो सीख रहे हो, बस वही बताना है कि मैंने आज ये सीख लिया, शुभ वरदान से मुझे आज ये सीख मिली, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और उम्मीद करिएता हूं कि आप मुझे इस मेरी बातों को पसंद करेंगे और इसे लाइक कमेंट शेयर करेंगे। ये बोलना ही पड़ेगा आपको, कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा कि लोग आपकी बात माने, यानी आपकी बातों को लोग मानने की आदी हो जाए। बात समझ रहे हो ना? चलो आओ, लोग 5 पिलर समझते हैं, जबकि मैंने आज सवेरे 6 पिलर की बातें करी थी, ये है ना। लेकिन
these are the 5 pillars of digital ecosystem. There are 5 about this, आप जब बिजनेस को डिजिटली ले जाते हो, सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कंटेंट से, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू डू इज योर कंटेंट. जो भी आपसे निकल रहा है, इट इज योर कंटेंट. आप अगर कैमरा पे बोल रहे हो तो भी, नहीं बोल रहे हो, किसी से 1-to-1 बात कर रहे हो तो भी, या अपने आप से बात कर रहे हो तो भी. मतलब एक बात बता दूं मोटे मोटे लेमैन तरीके से, कि आप अभी तक जो कर रहे थे ना वो यही है, बस आप उसको अनजाने में कर रहे थे, और अभी क्योंकि कंटेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने उसे काट के तोड़ के नाम और पहचान दे दिया है, उसको आकृति दे दिया है. कर आप लोग सभी यही रहे हो. किसी भी धंधे में आप सामने वाले को पढ़ा ही रहे हो. जब तक सामने वाले को ठीक से पढ़ा देते हो तभी वो सौदा होता है, नहीं पढ़ा पाते हो तो नहीं होता है. चाहे वो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे इंश्योरेंस के एजेंट हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने यही काम अनजाने में किया है. अब आप यहाँ पर इसको इसलिए जान रहे हो ना, क्योंकि अब आपको यही स्ट्रक्चर को आगे लेके फॉरवर्ड करना है, मानवता की सेवा करनी है, कॉन्शियसली करना है, कॉन्शियसली करना है, सजगता के साथ करना है. यही सेम चीज आप करते आए हो, ठीक है ना? एकदम याद रखना, इसमें कुछ भी आप मत सोचना कि हम ये वो BBC. आप कुछ भी किए हो ना तो यही किए हो, कुछ भी किए हो तो यही किए हो. इवन आपने बैलून के लिए अपने मम्मी पापा के सामने रोया है ना, और जमीन पे बैठ गए हो ना बाजार में, तो भी आपने यही किया है. किसी को तो समझ में आ रहा है कि आपने यही किया है. सेठाराम जी समझ में आ रहा है आपको? सो फर्स्ट पिलर इज कंटेंट. आपको अपना कंटेंट रेडी करना होगा जो आप डिलीवर करने वाले हो. एंड कंटेंट अगेन आपकी स्टोरी से ही आती है. दिस इज योर नीश, ठीक है? नीश इज नथिंग, इट्स योर स्टोरी, ठीक है? बिकॉज आप बहुत लोग बोलते हैं कि आपको नीश फाइंड करना होगा, या फिर जो ट्रेंडिंग है उसको फाइनलाइज करना होगा. कुछ फाइनलाइज करने वाली चीज है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप अगर कितना भी नया ऊपर से नीश निकाल लोगे कि चलो मैंने ये अपना नीश मान लिया, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे. और जब तक कनेक्शन नहीं बिल्ड होता है तब तक आपको मार्केट में लोग ट्रस्ट नहीं करते, और फिर ट्रस्ट के बाद ही मनी का आता है. तो मनी तो दूर की बात है, कनेक्शन ही बिल्ड नहीं होता, ठीक है? सो आप जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रखे हो, जो आपकी स्टोरी है, जो आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है, वही आपका नीश हो सकता है. अब अगर आप बोल रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो नो वन इज स्टॉपिंग यू from learning and then implementing and then sharing it, ठीक है? So it's never too late. So your niche वही हो सकता है जो आपने implement किया, experience किया, जो आपकी story है. देखिए, ये आप छोड़ दीजिए, एकदम आप जान जाइए ना कि आपके बॉडी पे जो एनर्जी है ना, वो पिछले 40 साल का, पिछले 50 साल का एनर्जी है. यानी आप कितना भी कुछ करोगे ना, तो आपका अंदाजे पे आएगा ही आएगा. अगर मान लो आप बोलते हो कि मेरे को कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि मैं क्या एक्सपीरियंस किया हूं और क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है. यहां से स्टार्ट होगी गिनती, यहां से स्टार्ट होगी गिनती, और 3 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना के अंदर में, और आप एक नया स्टोरी क्रिएट करोगे. और वो जो है ना, वो खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करेगा. बोला ना कि आप कुछ भी करोगे तो आपका वो जो है ना, जो बैकअप है आपका, जो पिछले से आपने फील किया हुआ ना, वो आपके अंदाजे पे में दिखेगा ही दिखेगा. वो रहने वाला है. तो एकदम टेंशन नहीं लेने का है कि अगर मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं जान रहा हूं, मेरा कोई एक्सपर्टाइज मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बोल सकता हूं, तो आपको जो बताया जा रहा है उतने ही करिए, उतने ही से आपको नया धार मिल जाएगा. और वहीं से आप चीजों को लोगों को बताने में, जैसे कि आपने मैथ पढ़ा या इंग्लिश पढ़ा या ग्रामर पढ़ा या आप जो भी पढ़ा है ना, तो जो पढ़ लेते हो फिर आप पढ़ाने की क्षमता में आ जाते हो ना. तो गुरु से आगे गुरु गुड़ हो जाता है और चेला चीनी हो जाता है. तो आप बात समझ में आ रहा है? तो मैं भी तो कहीं से सीख के आया ना, लेकिन मैं दावा ठोकता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो मेरा गुरु भी नहीं बता रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरह से उसको अपने जीवन का तजुर्बा के साथ उसको घोल के निकाला है, उसको जैसे मथा है. तो मैं जब मथा ना, तो मेरा गुरु का भी बाल बच्चा अभी उस दौरान उस लेवल पे नहीं है जितना लेवल पे मेरा बाल बच्चा है. क्लियर है बातें? तो वो फ्यूजन जो बना, वो नेक्स्ट लेवल का फ्यूजन बना. तो कहां से क्या निकला वो भूल जाइए. बाद में आपने क्या कर लिया, उससे उसका पहचान और उसका जो है ना रिफ्लेक्शन जो है ना आगे 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 चीजों को रोशन करेगा. तो एकदम चिंता मत करिए. जो मैं बता रहा हूं, मैं बोला ना कि 80 मेरा और 20 आपका. सब कुछ जो है ना, क ख ग ABCD यही है. बस मात्रा कब कहाँ कैसे लगाना है ना, आप कौन सा पंजाबी में हिंदी बोलने वाले हो, या हिंदी में पंजाबी बोलने वाले हो, या बंगाली में हिंदी बोलने वाले हो, हिंदी में बंगाली बोलने वाले हो,
आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप राजस्थानी में, गुजराती, मारवाड़ी में हिंदी बोल रहे हो, तो जाहिर बात है ना, मुंह पता चल जाएगा ना कोई मारवाड़ी आदमी हिंदी बोल रहा है। क्यों सेठाराम जी? कितना भी बोलोगे तो क्या वो खड़ी हिंदी बोल दोगे एमपी वाली? वो बंगाल का आदमी या वो उत्तराखंड का आदमी क्या वो पूरा एमपी वाली हिंदी बोल देगा क्या? नहीं बोल पाएगा। वो कहीं ना कहीं वो टच आ ही जाएगा, और जो टच आ जाएगा तो वो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो ये भारत की खासियत है। तो भारत नेक्स्ट लेवल का चीज है। So everything that you do will be unique in itself. ठीक है, कंटेंट हो गया. नेक्स्ट थिंग इज कोर्सेज. दिस इज समथिंग दैट यू सेल. ठीक है, नेक्स्ट फेज आप देखोगे कंटेंट को मोनेटाइज कराना. अब कोर्सेज के बाद आती है नेक्स्ट चीज कोचिंग. यानी सी जितने भी सेल्स एक्सपर्ट है ना मार्केट में, वो क्या बोलते हैं कि आपको सेलिंग करना है. सेलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस, और सेलिंग आपको सेल्स पर्सन नहीं बनना है, आपको एक कंसल्टेंट बनना है. ठीक है, और इसी चीज को समझाते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फर्म में जो सेल्स वाले लोग हैं उसको ट्रेन किया कि आप कोच करो, आप उनको समझाओ उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, लाइक दिस कस्टमर को ये करो. तो सबको एक रेवोल्यूशन आता है जब लोगों को समझ में आता है कि गंजे को कंघी नहीं बेचना है, हमको कोच करना है. तो सबको एक चीज एक बार ये पता चल ही गया कि यस देयर इज नथिंग अदर देन कोचिंग. हम एडवाइस दे रहे हैं, वो सब वही है, सब हम बता रहे हैं, मतलब हम कोच ही कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसको कैसे मोल्ड करना है कि हमें मोनेटाइजेशन हो, दैट मीन्स हमें मार्केट से धन मिले, मनी मिले, दैट इज अ होल अदर कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो कोचिंग इज नेक्स्ट, एंड देन कम्युनिटी. कि आप कोच तो कर रहे हो लेकिन अब आपने एक कम्युनिटी बना ली, आपका एक पूरा ट्राइब है. ठीक है, मेन बात पे आइए कि अभी सेलिंग को क्या बोला गया? सेलिंग इज द फॉर्म ऑफ सर्विस. सारे लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में, सेलिंग इज द फॉर्म ऑफ सर्विस. मेन बात पे अगर काम करोगे ना तो बाकी आप क्या बेचने वाले हो ना, ये कतई फर्क ही नहीं पड़ता है. अगर सेलिंग आपके लिए सेवा है, बस खत्म. क्या मैं नहीं बेचता? मैं आपसे पैसे नहीं मांगता क्या? लेकिन क्या आपको मेरी बातों से लगता है कि मैं पैसे मांग रहा हूं? मैं जो सेवा दे रहा हूं ना, वो सेवा बड़ा है और पैसा उसके सामने लग रहा है बस कोई सिक्का कॉइन है. तो आप जब कुछ करने जा रहे हो उसमें आपका जो भाव है ना, वो ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेगा कि आप कौन से भाव में हो. आप चाहते हो कि मुझे पैसे दे दे सर, वो मैं जो आप जो बता रहे थे ना सर, मैं वो लेना चाहता हूं सर, मैं कैसे ले सकता हूं, ये आपका भाव होता है. जब मैं आपको दे रहा होता हूं तो आप मुझसे कीमत नहीं पूछते हो, बस आप कैसे उसका हिस्सा बन जाओ ये पूछते हो. किसको किसको बल बांधूंगा वापस से मैं क्या बोला? कि जब मैं दे रहा होता हूं तो आप खाली उसका हिस्सा बनना चाहते हो. छोड़ो पैसा क्या ले गया, मुझसे मतलब नहीं है, जो भी पैसा ले गया दे देना. मैं जैसे मेरे कितने बार होता है कि मैं जब कोई चीज जानता हूं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ ठीक है तेरे को कोई टेंशन नहीं लेना है, वो जितना पैसा मांगेगा तू दे देना, बस तू सामान बोलना कि पापा बोले, खत्म बात. तो ये वाला मेन बात है. तो सेलिंग इज द फॉर्म ऑफ सर्विस का मतलब है कि आपका घनत्व इतना ना गहरा है कि खत्म, सामने वाला वो आपसे जुड़ने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है. ठीक है ना? तो मेन बात वो है. तो आपका वो जो है ना, वो उसमें माँ वाला प्यार है कि नहीं, उसमें वो कुशन है कि नहीं, उसमें वो आराम है या नहीं. अगर वो आराम है तो वो हर कीमत पे बिकाऊ है. ठीक है ना? तो आपको मेन बात पे काम करना होगा. आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप किसी भी तरह की चीजों को कर रहे हैं, मेन बात पे काम करिए. आपको कन्विंस इस तरह की बातों का अब कोई आधार ही नहीं है. अब सारे लोग को पता है ना कि मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, मैं कहाँ जाऊंगा. ठीक है ना? हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है. आपकी ऐसी की तैसी हो रखी है, लेकिन आपके पास कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. आप उसका विकल्प के बगल में खड़े नहीं हो रहे हो, आप कोई ना कोई ऐप खोज रहे हो. मत खोजो भैया, आप अपने हर चीज बना सकते हो. थोड़ा सा शांत हो जाओगे तो चीजें आपको कनेक्ट हो जाएंगी, और आपको कहाँ करना है क्या ना वो क्लियर हो जाएगा. क्लियर नहीं हो रहा है, धोखा हो रहा है आपके साथ. रियल एस्टेट में भी वही बात है. हर एक सेक्टर में जो है ना, सिर्फ अकल चल रहा है आज के डेट में. जिसका अकल चलेगा, और अकल चलेगा किसका? जिसका जमीन पे पैर होगा, जो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्टेड होगा. टेक्नोलॉजी बनाते बनाते अच्छे अच्छे की टेक्नोलॉजी निकल गई. तो जो आदमी जेन्युइनिटी के साथ होगा, जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन के साथ होगा, वही कुछ कर पाएगा. और मैं वही काम कर रहा हूं. यानी मेरे यहां से वो जो निकलने वाला है ना, वो सीधा मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो लोग हमारे यहाँ रह करके कर लिए जो मैं बता रहा हूं, वो पद्मश्री और पद्म विभूषण के लिए डिजर्विंग हो ही जाएंगे. क्योंकि आप मानवता की वो सेवा कर पाएंगे जो नेक्स्ट लेवल का है. और जब मानवता की सेवा होती है तो पद्मश्री पद्म विभूषण चल के आपके डोर को नॉक करती है कि मैं आया हूं, मुझे एक्सेप्ट कर. ठीक है?
So after coaching there is community, you create your whole tribe, और अब community के बाद आता है collaboration, ठीक है, where you collaborate with other, you know, big firms and all. So these are the 5 major C's, pillars. ये बातें जो आपने यहाँ सुनी वो एक बात थी, आज मॉर्निंग में जो मैंने बात करी थी वो दूसरी बात थी। इसी तरह से सेम बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स पे अलग अलग पिलर्स हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे अगर बरांडा बनाना है तो मुझे कैसा, कहाँ पे कौन सा पिलर लगाना पड़ेगा, मुझे अगर अपना बैठकी वाला रूम बनाना है तो मुझे कहाँ पर कौन सा पिलर लगाना होगा, मुझे बेडरूम या ड्राइंग रूम या किचन या टॉयलेट बनाना है तो मुझे कैसा पिलर कहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्या रूम का शेप एंड साइज देना होगा, तो आपको पता चलेगा। ऐसे करके बहुत सारे हैं जो आपको कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, जो हम आपको वहां पर बूस्ट करते हैं। क्योंकि बातों को जानना आपकी ताकत नहीं है, बातों को खड़ा करना आपकी ताकत है। तो आप कैसे खुद को उसके साथ जोड़ के अपने आप को खड़ा करोगे ना, ये आपकी ताकत है, और अभी इसी की जरूरत है आपको। तो जो लोग पहले से है उनको पता है हमारे व्यवस्थाएं, अभी जो लोग हमारे से कनेक्ट होना चाहते हैं उनको 18,999 रुपए देना पड़ेगा। साथ में 369 एवरी फ्राइडे से पहले दे देना है। जो लोग अपना पैसा फ्राइडे तक नहीं दे पाते हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, फ्राइडे तक अपना पैसा दे दिया करें। 369 एवरी वीक, ये एकदम देना ही देना है। और 18,999 रुपये अगर आप दे सकते हैं तब आप हमारे LMS का हिस्सा बन सकते हैं। तो बोलेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा, जिसको जिसको आने का इच्छा है वो आ जाए तुरंत पे करके, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी के पास कोई सवाल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आपकी क्या मदद कर सकते हैं। क्या कोई जानना चाहता है या कोई बताना चाहता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कोई है जो इस बारे में बोलना चाहेगा? रात्रि, तुम एक छोटी बच्ची हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? $10,000 वाला कोर्स। वो आप लोगों को पता है, वो खत्म हो गया। So you can ask your questions. आपको जो भी यहाँ से पॉइंट समझ में आया है ना, वो 6 पॉइंट आपको लिखना है। Yeah. मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी लोग नए हैं ना, हर एक लोग लिखेंगे, मैं सबका वो पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि आप वहां लिखने के बाद, यहाँ पे टाइप करने के बाद वापस से आप जो है ना यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नहीं लिखते हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे सबको यहाँ पर लिंक में जाके टाइप करे आपकी 6 पॉइंट्स जो आपने यहां से आज उठाया है, 6 पॉइंट्स, और उसके बाद अपनी अंदर की खूबसूरती आप लिखे वहां पे कि आपने क्या फील किया है, ठीक है ना। 6 पॉइंट जो आपने यहां से सीखा है, और इसके बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है अंदर से, वो भी टाइप करें। यानी एक बात लिखे वहां पे, 2-4 शब्द आप लिखे वहां पे, वाक्य लिखें, और साथ में 6 वो पॉइंट्स लिखें जो आपने यहां से आज उठाया है कि हम आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। सभी लोग टाइप करेंगे, एक भी आदमी बिना बोले क्लास छोड़ के नहीं बाहर निकलेंगे, ठीक है। आज एक स्पेशल चीज आप लोग के लिए अवेलेबल है हमारे पास। जैसे सभी लोग टाइप कर देंगे, वो डन टाइप कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों को एक स्पेशल नीश टूल देने वाला हूं, सभी को दूंगा, सभी को, जो भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित है। तो सभी लोग टाइप करके यहाँ पे एक करें, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं आपको, और सभी लोगों को मैं वो नीश टूल देने वाला हूं, जिससे आपका नीश फाइंड करना खत्म, एक बार में खत्म। जस्ट टाइप डन वंस यू आर डन, और आपने जो वहां लिखा है उसको आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है।
स्टार वाली जगह पे 5 स्टार दबा देना है। आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, बढ़िया से लिखे 2 मिनट में। हम लोग 5:48 पे ये नीश टूल आपके साथ शेयर करेंगे, तो आराम से लिखे, है ना। Yes, it's 48. 5:48. Done. लॉगिन ही नहीं हुआ आपका, कोई बात नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा। नाउ सी, ये लिंक जो है ना, ये आप कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। जो भी नोटपैड क्लिपबोर्ड फोन में होता है ना, उसमें आप पेस्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए लिंक। आप ऐसा है ना कि जैसे आपका फेसबुक से या फिर गूगल से वो लॉगिन होता है, तो इस लिंक पे जाके अगर फेसबुक से या फिर गूगल से लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। जिनका जिनका नहीं हुआ है, यू कैन सेव दिस लिंक एंड डू इट लेटर, ठीक है। और बाकी सारे लोग यहाँ पर वापस अटेंशन पे करें। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीश टूल राइट नाउ। यस एवरीवन, you can turn on your cameras. Rajesh sir, okay, you have written it, great. Now see, I'll be using this tool in front of you. यहाँ पर मैं यहाँ लिंक में गई हूँ shubhvardhan.com/niche. Now I'll be typing my name. आप सबको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, ठीक है। Press enter या OK. Your mobile number, enter. Your email, enter. Now what problem do you want to solve? यहाँ पर select का ऑप्शन आएगा, select सी नीश की कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 कैटेगरीज दी गई है, आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ओनली वन सिलेक्ट करना है। बिजनेस, करियर, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप या क्रिएटिविटी। लेट्स सपोज मैं चूज करती हूँ बिजनेस, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल। अब विच सेगमेंट डू यू वांट टू वर्क ऑन, अब आपको और नीश डाउन होना है, आपको सेगमेंट चूज करना है। बिजनेस में कौन सा सेगमेंट, फॉर एग्जाम्पल सेल्स है सेगमेंट बिजनेस में, डायबिटीज है एक सेगमेंट हेल्थ के अंदर, डे ट्रेडिंग है सेगमेंट मनी के अंदर, मैरिज है सेगमेंट रिलेशनशिप्स के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। आई विल राइट लेट सपोज सेल्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना सेगमेंट चूज करना है, ठीक है। What method or tool will you use to solve that problem? Now you need to write the method. मैं यहाँ पर लिखूंगी डिजिटल मार्केटिंग, मेरा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग मेथड यूज करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप हेल्थ में हो तो आप चूज कर सकते हो कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, योगा से, रेकी से, हाँ, आयुर्वेदा से, so you healing choose, से, हाँ, so you choose the tool. वेट लॉस है सपोज, तो वेट लॉस में कौन सा टूल यूज कर रहे हो आप रनिंग करना चाहते हो, आप यू नो एक्सरसाइज वाला है, वही योगा, हीलिंग, योगा, थेरेपी, क्या करना चाहते क्या हो, करना डाइट, चाहते हो, ठीक है। तो जिम, आप, हाँ, क्या करना चाहते हो, मेथड आप चूज करोगे एंड यू विल प्रेस ओके। नाउ who do you think is your ideal micro target market? Be very specific. For example, entrepreneurs, working professional, women, new couples, high school students, etc. तो आपको specific अपना target market choose करना है. Who do you want to serve? And most probably वो आपका mirror होगा, ठीक है। Like अगर आप entrepreneur हो तो वो entrepreneur होगा, ठीक है, like this. अगर आप women हो तो वो women होंगी, ठीक है। So here I will choose entrepreneurs, ठीक है, for example. Now what's the end goal you want people to achieve through your program? आपको उनके लिए एक एंड गोल सेट करना होगा कि ये मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ अचीव करने में। तो आई विल राइट फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर लेट्स से हियर वी आर हियर टू हेल्प देम अचीव शुभ वरदान बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट, ठीक है। तो इसलिए मैं शुभ वरदान लिखूंगी बिकॉज दैट इज द स्टेट जो हम आपको अचीव करने की हेल्प कर रहे हैं। आप 300 करोड़ लिख सकते हो, मनी का अमाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। Now, what's the one word you want to own in your micro niche? अब one word जो आपको own करना है in your micro niche. Let's suppose आपको yeah. So one word में you can type जैसे आप एक teacher, coach, what is that? You know, let's say मैं यहाँ पर type करती हूँ one word I want to own. Skill. Let's say okay, skill या teacher, one word. Let's see what happens, ठीक है। If you were to build a community, अब आपको एक community का you know नाम select करना है, जैसे कि hub हो गया, club हो गया, society हो गया, alliance हो गया, तो मैं club select कर लेती हूँ, complete. Now, अब यहाँ पर आपका मिशन स्टेटमेंट आएगा. Here is your mission statement. Hi, I am Vardhan Sahu and I am on a mission to help 100,000 entrepreneurs achieve Shubh Vardhan using digital marketing, and I am the founder of the Skill Business Club. Okay, so skill is like this, ठीक है, one word. जैसे कि अगर let's suppose शुभ वरदान अगर one word होता, या you know नेचुरोपैथी अगर one word होता, तो होता नेचुरोपैथी डैश क्लब, जो भी हेल्थ क्लब, ठीक है। So like this. अगर मैं सेल्स लिखती वहां पे तो सेल्स बिजनेस क्लब हो जाता, ठीक है। So आपको like ये this. समझ में आया क्या हुआ? आइए कैमरा के सामने आइए और बताइए क्या हुआ, इसको पढ़ के समझाइए। अनुपमा मैम बताइए क्या समझ में आया यहाँ से आपको, ये टूल्स किस काम में आपका आने वाला है? कैमरा नीचे करके बात कीजिए। Kindly unmute yourself. Yes, I am allowing you to unmute yourself. Kindly unmute Anupama ma'am.
Is it possible or not? ठीक है, All right. छाबड़ा साहब बताइए क्या समझ में आया आपको, ये क्या था? इस टूल के द्वारा हम अपने निच तक पहुंच सकते हैं। ये टूल्स मैं आप लोग को गिफ्ट कर रहा हूँ। ये टूल्स जैसे बहुत अच्छा। महंगा है, मैं पहले इस्तेमाल करवाता था अपने सेशन में, बीच में मैं इसको, क्योंकि आप लोगों को पता है लोग पैसे देते हैं तब गाड़ी चलती है, तो रुक गई थी। वापस से मैं ये टूल्स को लेके आया हूँ और आप लोग को दे रहा हूँ गिफ्ट, है ना। तो मैं इसका लिंक शेयर करूंगा कहाँ, अपने ग्रुप में, और आप लोग को सभी को अपना वीडियो कंप्लीट करना है 3-3, तभी ये वीडियो मैं जब ये लिंक दूंगा, जिसका 3-3 वीडियो आ जाएगा तब मैं ये लिंक साझा करूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग को इसके ऊपर वीडियो बना करके हमें सबमिट करना है, या फिर आपको अपना बताना है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है। किसको किसको बात समझ में आ गया? आप लोगों को 3-3 वीडियो बनाना है, अपनी LMS पे जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, 3 वीडियो बनाना है। आज का ही काम बता रहा हूं, जिनका 3 वीडियो आ जाएगा मेरे पास, 3 लर्निंग वो साझा कर देंगे, मैं उनको क्या करूंगा, ये टूल्स दूंगा, पर्सनली उनके पास भेजूंगा, सबको नहीं दूंगा। फिर वो इस पे प्रैक्टिस करके उसका स्क्रीनशॉट साझा करेंगे और बोल के भी समझाएंगे। Yes. समझ में आया बात? समझ में आया बात? अभी LMS पे जो आपने पढ़ाई करी है उसके ऊपर में 3 वीडियो बननी चाहिए, 2.5 मिनट के अंदर की वीडियो, ठीक है ना। ओके, 3 वीडियो से आप 10 वीडियो बना सकते हैं, मैं रोकता नहीं हूं। आप जितना करोगे अपने लिए करोगे, जितना ज्यादा विजिबल हो जाओगे उतना ज्यादा मौका आपको मिलेगा तुरंत रेज करने का आगे ना। जिसका 3-3 वीडियो होता जाएगा, मैं उसको ये टूल्स उसके प्राइवेट में देता चला जाऊंगा, और फिर वो अपना रिसर्च करेगा बंदा, और रिसर्च करने के बाद पर्सनली मुझसे गाइडेंस भी ले सकता है, और मैं गाइडेंस भी दे दूंगा पर्सनली, है ना। वरदान बैठी है गाइडेंस देने के लिए, तो वरदान का नंबर भी मैं शेयर करूंगा। वरदान के साथ डिस्कस करके अपना नीश फाइनलाइज करेंगे वो, और उसके बाद उसको वो ग्रुप में साझा भी करेंगे कि उनका माइक्रो नीश क्या निकल के आया और वो कैसे बोलते हुए साउंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जब अपना ये करोगे तभी आपको अपना साउंड पता चलेगा कि आप कैसे साउंड कर रहे हो। सेठाराम जी, आप अपना LMS में लॉगिन कर लिए? साउंड आप ऑन करिए, बताइए क्या रहा आपके लिए। जैसे अब मुझे समझ आ रहा है LMS क्लास से, अब मुझे पता चला समझ आने, तो इतना दिन मुझे पता ही नहीं चला। इसको अब बोलते वो हैं रात गाँव से आए हो क्या? अब वो पिछले वाली क्लास को रात को ही पढ़ करके मुझे पूरा करना पड़ेगा। जो करना है करिए, दिन रात एक कर दीजिए, 24 घंटा में मेरे को 48 घंटा का समय लगेगा आपका। आप सही है, लगाने तो को मैं तैयार है तो क्या? बहुत पीछे रह गया हूँ मैं, अब ये करना पड़ेगा मुझे। कर लीजिए सर, कर लीजिएगा तो गंगा नहा लीजिएगा। पांचाल साहब अनम्यूट कीजिए। आपका LMS में क्या स्थिति है? LMS तो स्टार्ट किया नहीं है, बीच में किया था बहुत फिर से बढ़िया, स्टॉप कर दिया। बहुत बढ़िया। LMS पता नहीं, आपने इतना बूस्टिंग करने के बावजूद नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट है ऐसा बोल के मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन तो वीडियोस वगैरह सब बन रहा है अभी मेरा, लेकिन यहाँ पे वीडियो जो बनाना आप जो कर रहे हैं ना, आप गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने बहुत बार भी टोका आपको, आप समझते नहीं है कि पता नहीं क्या बात है, भगवान का आशीर्वाद नहीं गिर रहा आप पे। मैं तो यही बोलूंगा, भगवान का दया आप पे नहीं गिर रहा है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप वीडियो क्यों बनाएंगे? किस बात के वीडियो बना रहे हैं आप? LMS पे ही नहीं तो वीडियो किस बात के बना रहे हैं? आपके मन के बकर बकर का वीडियो चलेगा बाजार में क्या? आपके मन का बकर बकर का वीडियो बाजार में जरूरत नहीं है, बहुत सारे बकर बकर करने वाले बैठे हैं। उसका कार्य लोगों को चाहिए एकदम वो अंदर वाली बातें, जो पेट से निकलती है ना, तो कान खड़ा करते हैं लोग। हेलो, कान खड़ा कब करते हैं? जब पेट से निकलती है बातें। वो आपके भचर भचर से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो सुनेंगे ही नहीं, वो अगले बार देखेंगे चेहरा, बोलेंगे अरे पार कर देंगे आपको। वो मैग्नेट खड़ा कीजिए ना, मैग्नेट, ठीक है। आइए जितेंद्र साहब, अभी जो आप लोगों को समझ में आ गया ना, LMS पे जाके तुरंत 3 वीडियो बना के भेजिए मेरे पास। सर जी प्रणाम। अयोध्या नरेश। अब मैं क्या कहूं सर, अभी अभी मेरी बात को जो है
अभी हमारे से पहले वाले ने कहा कि वो एलएमएस दिया आपने और हम लोग लिए हैं और उसको लेकर के सुरक्षित रखे हैं। ये मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने वैसे पीछे भी मैंने आपको एक मैसेज भी किया था, लेकिन फिर मुझे लगता है आपको समय नहीं मिला तो आपसे आपने बात नहीं किया, या जो भी है। तो ये सर जो एलएमएस हमको मिला ना, बहुत बढ़िया। कई लोग हमें बताते हैं, मैं कंटिन्यूअस आपको देख रहा हूँ, आपकी हर बात सुन रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वो 6 घंटे वाला जो लंबा वीडियो था, तो उसको देखने में एक बार की मतलब उसका 6 घंटा देख के ही एक बार की लगा कि अच्छा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा इतना लंबा लगा। लेकिन उसे भी मैंने टुकड़ों में करके देखा, मैं ऑफिस में बैठ के भी मैंने देखा उसे बीच बीच में। तो मैं सर जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए मैं आया भी हूँ, मैंने पहले भी मेरी आपसे बात हुई है ना, कि ये जो निच हम क्या कर सकते हैं, ये मामला क्लियर कैसे हो। पहली बात तो ये शुरुआत ही यहीं पर अटकी हुई है। और जो दूसरी बात है सर, जो एलएमएस दिया गया और कई फ्री बोनसेस करके, मैं मेल भी चेक कर रहा था तो मेल में भी कई चीजें मुझे मिली। तो एक मुझे लगता है कि आपको 10-15 मिनट का समय देना चाहिए कि मतलब हाउ टू स्टार्ट। हमारे ये एलएमएस में जो चीजें हैं तो हमने उसे किया, फिर उस सेकेंड किया, आज ये करें, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है ना। ईमेल में हमें जो आपकी चीजें मिली हैं वो कई 7-8 चीजें वो क्लियरिटी के लिए, उसके ऊपर कि आप इसको लोड करिए। मैंने एक आध उसको करके देखा भी, उसमें ऐसे ऐसे है। अभी वरदान का वो एम मिथ का जो आया था वो भी मैंने देखा, वो भी बहुत सुपर, बहुत बढ़िया था एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस चीजों को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार वो आप देखिए, वो कहते हैं ना आपकी, भाई मैं माँ हूँ, नो डाउट आप माँ हैं, इसीलिए हम लोग भी एकदम निश्चिंत हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सर एक बार चीजों को बैठा करके ये बताना पड़ेगा आपको कि देखो भाई ऐसे रखो, दाहिने हाथ से रोटी तोड़ना, अभी बाएं हाथ से रोटी क्यों तोड़ रहे हो, इसको इधर लगाओ। एक बार आपको स्टार्ट देना होगा सर। आप इस बात को थोड़ा सा, मतलब मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी फीलिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टार्ट चाहिए सर। और स्टार्ट के लिए ये 40 साल पुरानी हैबिट है ना, कंफर्ट जोन है, जो हम करते आए हैं और जो हम समझते हैं वही सही है, ये सब हम समझते हैं और आप तो हम सबसे ज्यादा समझते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके एक बार की 10 मिनट 5 मिनट अलग से, अच्छा चलो भाई बैठो, सेठाराम जी बैठो, जितेंद्र जी बैठो, चलो अभी एलएमएस 1 खोला था, क्या हुआ, सेकेंड में क्या दिक्कत है, ईमेल पे आप क्या नहीं पा रहे हो, निच क्लियरिटी के लिए आप आ रहे हो। अभी मैं फिर से वापस ईमेल में ढूंढता हूँ अपना पासवर्ड। खैर मैंने उसे ढूंढ के डायरी वायरी पे सब लिख लिया ठीक से, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर एलएमएस में ही जैसे होता है, या एक पर्सनल हमारे पास वो आ जाता है आपका मैसेज कि उसमें हमारा जो आपका subardan.com से, जहां से हम अपने उस मेंबर लॉगिन में जाते हैं, तो उस चीज को हैंडल करने में हमें आसानी होती, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं इसमें नो डाउट। लेकिन साहब मतलब मैं तो 52 साल पुराना बच्चा हूं, अब इतने पुराने बच्चे वरदान जैसे तो नहीं हो सकते, आपको समझना ही पड़ेगा ये बात। तो थोड़ा सा सिस्टम में मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। ये है अवेलेबल, ये बातें अवेलेबल हैं, लेकिन किनके लिए हैं? जो आ चुके हैं मेन पैनल में। ये एक्चुअल पे क्या है ना, देखिए जो मैंने सवेरे आप लोगों को गाइड किया था ना, जी चैलेंजेस हर स्टेज पे हैं। आप लोग को ऑडियो याद है ना, सवेरे जो मिला था आप लोग ऑडियो कंज्यूम किए 8.5 मिनट का ऑडियो में। चैलेंजेस हर स्टेप पे हैं, लेकिन मैं चैलेंज अगर सॉल्व करूंगा तो किसके लिए करूंगा, बात वहां पर आती है। चैलेंज मेरे लिए भी है और चैलेंज आपके लिए भी है। आप चैलेंज ऑन कर ही नहीं रहे और मैं चैलेंज को सॉल्व किए जा रहा हूं, धोखा वहां पर है। चैलेंजेस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, चैलेंजेस आपके लिए भी है। तो आप अगर विजुअलाइज करेंगे खुद को, एक वीडियो बना के डालेंगे कि सर ये जो बात आपसे मैं अभी पकड़ के पूछ रहा हूं, क्या आप इसके ऊपर वीडियो डाल सकते थे? ये समस्या अगर आपकी होती और पूरे समाज की होती तो सब लोग उसमें टिक मारते, अपना थंब इंप्रेशन डालते कि नहीं मुझे कुछ झुंझुनना चाहिए, मैं रोता हूं ऐसे। मेन बात पे आइए ना, चैलेंजेस हर जगह है, इस चैलेंज पे डालना ही मेरा काम है। अगर एज ए मास्टर मैं हूं तो मैं आपको चैलेंज में डालूंगा, तभी मैं आपको रिजल्ट पास और फेल का दे पाऊंगा, तब सर्टिफिकेट की बात आएगी ना।
आपका करना ही आपका है, क्योंकि मुझे पता है 100 के 100 लोग नहीं करेंगे। मैं कितना भी झुन्नुक से दूध पिलाऊंगा गोद में बैठा के हिला हिला के ना, तो भी आप नहीं पियोगे। आपको भूख लगेगा तभी आप माथा लगाओगे। दिक्कत वहां पर भी है ना। तो चैलेंजेस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपके मन में वो तलब है क्या? तलब होगा तो सूखा रोटी और पानी बोला ना, आपको भगवान का आशीर्वाद लगेगा कि ये नहीं मिलता तो मैं मर जाता। अभी आप मर नहीं रहे हो ना, अभी तो भोजन पर्याप्त है ना, इसीलिए इतनी बातें हैं। ये नहीं रुका तो नहीं होगा। गरुड़ 4 महीना कुछ नहीं खाता है, फिर भी वो उसको सही करना होता है तो कुछ नहीं खाता है। उसका चोंच ही खत्म हो चुका, जब मुंह ही नहीं है तो खाएगा कहां से बेचारा। तो मेन बात पे आइए ना, तो वो जो चील जो है, वो ईगल जो है ना, वो 4 महीना अपने आप को खत्म। जब चोंच आ जाता है तब वो अपने ही बदन के सब चमड़ी को उधेड़ देता है, क्योंकि उसे नया चमड़ी चाहिए, नया नया पंख चाहिए। मेन बात है, कुदरत तो ये कॉल दे रहा है आपको। अब उसमें मैं सब बातें बोल ही रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल बार बार लिख के भेजा, मुर्गा से ईगल बन जा भाई, मुर्गा से ईगल नहीं समझ में आया, आज मैंने उसके ऊपर वीडियो डाल दिया, ठीक है ना। मुर्गा से ईगल पिछले 10 दिनों से मैं बोल रहा हूं, आप लोग नहीं समझे, आज मैंने उसके ऊपर वीडियो भी भेज दिया। अब तो समझ जाइए, करना आपके अंदर है सर। आपको अपने आप को विजुअलाइज कराना होगा, हर बातों को प्रखरता से, सर ये नहीं आ रहा समझ में बताइए तो, सर ये नहीं आ रहा समझ में बताइए तो एक अच्छा बच्चा जो मैं अभी आप लोग के ग्रुप में डाल चुका हूं, एक ग्रुप में डाल दिया, मैसेज फिर डाल दूंगा, आस्किंग द क्वेश्चन इज द मेन। मैं बोला मैसेज भी डाल दूंगा आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ा देर में, है ना, आपके ग्रुप में, ऑलरेडी एक ग्रुप में डाल चुका हूं। तो आस्किंग द क्वेश्चन इज द मेन फिलॉसफी। इस धंधे में आपके पास सवाल है तो आप राजा बनोगे। इस धंधे में क्या, आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी आप रहे हो ना, आपने अपने सीनियर से, अपने सुपीरियर से अगर सवाल पूछने का कुवत रखा है ना, तो आप आगे बढ़ोगे। सवाल ही आपको रईस करेगा। सवाल नहीं पूछ पाते हो, गाड़ी वहां फंस जाती है। अगर आप सवाल पूछते हो जहां पर भी, आज उस कौटिल्य का नाम पूछ लो, कौटिल्य के 2500 इंटरव्यू अवेलेबल है ना, गूगल बॉय। उसने एक ही काम किया, दादा से, पापा से सवाल पूछना शुरू किया। उनके पापा का और दादा का जिज्ञासा बड़ा, बच्चा पूछता है, इसको बताते हैं, बताना शुरू किया। आज गूगल बॉय, गूगल बॉय के नाम पे जाना जाता है। एक बंदा आज फेमस हो चुका है सिर्फ सवाल पूछने की वजह से। आप भी सवाल पूछो ना। मैंने भी आज सेशन आने के साथ बैठा, बोले सवाल पूछो, आप क्या पूछना है, आपको क्या चाहिए। सवाल का कीमत है, सवाल नहीं पूछ सकते हो आप, सवाल पूछने का कीमत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट आप इनिंग्स में आइए, एलएमएस में जाके 3 दिनों की पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, सब कुछ पता है आपको। आपको भूख लगेगा तभी आप खाएंगे बॉस, नहीं तो पकवान भी सड़ा हुआ लगेगा। एकदम क्लियर कट बात है। 3 दिन कंप्लीट कीजिए। 70,000 रुपये पार्सल पेमेंट है, या 1,80,000 है तो 1,80,000 डालिए, नहीं है तो पार्सल पेमेंट 70,000 डालिए, अंदर घुसिए, तुरंत 21 दिनों के अंदर में बेड़ा एकदम पार कीजिए, एकदम नया अपना स्वरूप देखिए। आपके अंदर कितना है ना, वो उसी से पता चलेगा। इसीलिए मैं अभी देखिए मेरे लिए क्या है, मैं हर चीज फ्री में दे सकता हूं, आपके काम भी नहीं आएगा। मैं अभी चाहूंगा तो एक बार टाइप नहीं कर दूंगा, नीस का जो मैं बोल रहा हूं कि दूंगा, मैं यहां टाइप कर नहीं सकता हूं, कर सकता हूं, कोई फायदा नहीं होगा। फ्री में आपके काम ही नहीं आएगा। आप कीमत चुका करके लोगे तो समझ में आएगा। अभी 3 वीडियो पे करो, मैं आपको दूंगा। आप जो नीस की बातें कर रहे हो ना, अभी नीस क्लियर हो जाएगा, अभी तो क्लियर करके दिखाया ना। अभी 3 वीडियो एलएमएस कंप्लीट करो अपना, 3 वीडियो बना के तुरंत भेजो, मिनिमम बोल रहा हूँ। 20 बना सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप करके दो। समझ में आ गया क्या? छाबड़ा साहब, आप मुझसे भी फोन पे बात कर लीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए एलएमएस पे, और तुरंत 3 वीडियो क्रिएट करके भेजिए।